Hi everyone. Very good evening. Please switch on your videos. Teja ji, very good evening. Good to see you here after a long time. Yeah, long time. How are you, sir? Wonderful. Very nice. So nice to see you. Like Same after here, sir. really, really long time. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, Good Preeti evening, ji. sir. Good evening, Preeti ji. Good evening, C.K. Lakhera. यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है? हाय, क्या नाम है Good आपका? evening, sir. गुड इवनिंग, क्या नाम है Sir, आपका? द बटन Pushpa. स्पेक्टिकल्स, पुष्पा जी। Yes, Pushpanjali. My नहीं, name. पुष्पांजलि, एक सेकंड रुकिए। आपका नाम क्या है? चश्मा पहना हुआ है आपने, द वन हु इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स। हाँ जी, आप अनम्यूट करें खुद को। हाय, बोलिए। Tarali. प्रणाली नाम है आपका? Tarali. TERALI. नहीं, तराली, रुकिए, आपको तो मैं जानता हूँ। रुकिए, देयर समबडी एल्स इन स्पेक्टिकल्स। हाँ जी, द लेडी। Okay. आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका नाम C.K. लखेरा लिखा हुआ है यहाँ पर। जी। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, C.K. लखेरा। अच्छा, आपका नाम C.K. लखेरा है। हाँ जी, हाँ जी, वैसे wonderful. Okay, wonderful, very nice. Good evening. Welcome to SAG Learning. शायद सर, हाँ जी। Thank you. sir. तराली जी, आपको तो जानते हैं हम। Very good evening. I understand spectacles की वजह से हो सकता है। Very good evening. Tejaswini, very good evening. Good evening. Pushpanjali Bal, right? Yes, sir. Yes, Wonderful. Good evening. Okay, Meenakshi ji, Harman Singh ji, और Said Naila, please switch on your videos. Harman ji, Said Naila, Meenakshi ji, if you can please switch on your videos, would be nice before we begin. Yes, thank you. कैसे हैं सबके सब? How is everyone doing? Tejaswini, how are you doing? Sir, Not really well. पिछले 4-5 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज। आज मैंने सोचा कि ये तो करना ही है, इससे एनर्जी आ जाएगी। Wonderful, thank you so much. Thank you everyone. Acha, Harman is also there. Wonderful, Harman, good to see you here. Hi, everyone, please mute. Harman, unmute yourself. Yes, sir. Hi, how are you doing? Very Hello, good to sir. see you. Yes, sir, I'm fine. Wonderful, very nice. Okay, let's begin today's session on 5 ways to overcome fear. किस किस के जहन में बहुत ज्यादा डर है, बताओ। प्लीज हाथ खड़ा करें। डर। अच्छा, बाकी सब फियरलेस है तो फिर तो बात ही नहीं थी, फिर तो आने की क्या जरूरत थी अगर फियरलेसनेस है तो। कहीं ना कहीं आई एम श्योर थोड़े बहुत डर तो होंगे ही। उन डरों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे। दैट्स व्हाई वी थॉट लेट्स जस्ट अटेंड दिस सेशन एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट फियर इज। करेक्ट? चलो, लेट्स कीप दिस वेरी इंटरैक्टिव, तो मजा भी आएगा। What is the definition of fear? Please keep your pen, copies, diaries with you so that you can keep writing. काफी सारे pointers आते जाएंगे, आप लिखते चले जाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें उस समय समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वापस भूल जाते हैं। So जितना आप लिखते चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा, जो भी pointers आपको टच करे, जो भी pointers बताए जाएं, ताकि एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाए। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। फियर की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? What is the meaning of fear? Or what is the definition of FEAR, fear? For One me, second, हाथ खड़ा करके ऐसे नहीं, एक सेकंड। किसने हाथ खड़ा किया है? ओके, हाँ जी, तराली जी बताइए। What is the definition of fear? for me, fear is like it's a feeling of uncertainty. Fear is uncertainty. तो बेसिकली एक फियर जिसकी आप बात करें, द फियर ऑफ अननोन, वो तो टाइप्स ऑफ फियर हो जाएंगे जिसके बारे में हम Yeah. डिस्कशन करेंगे। दैट्स वंडरफुल। बट Yeah. अभी मुझे कोई बताए फियर की डेफिनेशन क्या है? FEAR इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ये बताएं।
सोचो सोचो, थोड़ा सा तो दिमाग को हम थोड़ा सा चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, somebody wants to guess, somebody wants to guess what is the definition of FEAR, fear? अरे इतने सारे fears हैं, कुछ definition भी तो होगी। सोचो सोचो। कौन गूगल पे जाके देख रहा है? हाँ जी, मीनाक्षी जी बताएं, what is the definition of FEAR, fear? Maybe the process of losing something. No, that is also the types of fear. जिस हम क्या करेंगे, fears के types भी बताएंगे कि कौन कौन से fear हैं। जैसे उन्होंने बताया fear of unknown, correct? ये एक fear है। एक आप कह रहे हैं the process of losing something or someone, right? Yes. वो It may be types anything, of, anything. yes, anything. it can be, it is types of fear. That's okay, जो हम अभी discussion करेंगे, correct? थोड़ा दिमाग और लगाते हैं। हाँ, थोड़ा सा दिमाग और लगाइए। fear का मतलब बताइए। तेजा जी, can you make a guess? Guess. FEAR. No, sir. अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिंपल कर देता हूँ। फियर का तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। फियर का डेफिनेशन है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ये तो आपने पता नहीं बहुत सारी कोर्ट्स में पढ़ा होगा, कहीं किसी के पास लगा होगा, दीवार पे चिपका होगा। सिंपल है ना? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल मतलब एक ऐसी चीज जो है नहीं लेकिन दिख रही है और महसूस हो रही है, बस और कुछ नहीं है। It is appearing real to you, but actually it does not exist. अगर एग्जिस्ट करती होती तो डर ही क्यों होता? एग्जिस्ट तो हकीकत करती है। फियर हर हाल में आपके दिमाग की एक कहानी होती है। हर इंसान की अपनी अपनी कहानियां होती हैं, इसलिए सबके अपने अपने फियर्स होते हैं। किसी को फियर ऑफ अननोन है कि कल क्या होगा, तो जैसे मीनाक्षी जी ने कहा किसी को किसी के खोने का डर है। हर इंसान के अपने अपने फियर्स हैं। किसी का किसी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी में फियर है, किसी का कम फ्रीक्वेंसी में फियर है। जैसे जैसे कहानियां दिमाग में बनती चली जाएंगी वैसे वैसे फियर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो जितनी कम कहानियां बनाएंगे उतने कम फियर होंगे। बड़ा सिंपल पॉइंट है पहले लाइफ का, कि कोशिश करें हकीकत को एज इट इज देखना शुरू करें, दिमाग को कहानियों में ना उलझाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं फियर ऑफ अननोन की, क्योंकि तराली जी ने कहा है तो हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके। फियर ऑफ अननोन कि कल क्या होगा, क्या ये हमारे दिमाग की कहानी नहीं है? इसी चक्रव्यूह में फंस के तो हम कहानियां बनाते हैं कि कल एक्चुअली क्या होगा। क्या कल जो होगा किसी को आज तक पता चला है? इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में इतने हजारों सालों से लोग रह रहे हैं, क्या कोई 100% विद एक्यूरेसी प्रिडिक्ट कर सकता है कि कल क्या होगा? हम सिर्फ 1+1+1+1+1 जोड़ते रहते हैं, मैथमेटिकल कोटेशन सब चीजें जोड़ के हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल बारिश होगी। 100% होगी कि नहीं किसी को पता नहीं है। या देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद ये हो जाएगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी शायद ये हो जाएगा, होगा कि नहीं किसी को पता नहीं। तो मतलब क्या है, हम सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक कहानी बनाते हैं और हम इस कहानी को सच मानना शुरू कर देते हैं। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम अपनी कहानियां बनाते रहते हैं, कहानियां बुनते रहते हैं और उस कहानियों को हकीकत मानना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, कभी कभी कहानी जो है आपकी प्रोबेबिलिटी में फिट हो जाती है, शायद उसका कुछ हिस्सा सही बैठ जाता है, तो आपका विश्वास उसकी तरफ बैठ जाता है, तो आप उसको प्रिडिक्ट करने का और प्रयास करते हैं। जैसे हम गैम्बलिंग करते हैं ना, रूले खेला किसी ने कभी? कैसीनो में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो हमें कहानी बनाते हैं, यार मेरा बर्थ डेट 2 अप्रैल को आता है तो 2+4+1982 कॉन्स्टिट्यूट्स टू 7। अगर मेरा 7 लकी नंबर है बचपन से तो 7 यहाँ पे रखूंगा और रेड कलर मेरा फेवरेट है तो 7 रेड आ जाएगा तो शायद मैं जीत जाऊंगा। क्या ये आपकी कहानी नहीं है? क्योंकि किसी और का रूले में कोई और लकी नंबर होगा, कोई और बर्थ डेट होगी, कोई और टाइमलाइन होगी, कोई और किसी सेकंड पे पैदा होगा, कोई किसी घंटे पे पैदा हुआ होगा, किसी का कोई और बर्थ डेट होगा। सब अपने अपने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन को मिला के हम एक कहानी बुनते हैं कल के बारे में, क्योंकि हमें डर बहुत ज्यादा लगता है अननोन से। ह्यूमन बीइंग की बहुत पुरानी फितरत है कि अननोन से बहुत डर लगता है। हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज के बारे में पहले से जान लें। इसीलिए कोरोना के बारे में इतना ज्यादा डर क्यों है? क्योंकि अननोन है ना, पता नहीं कौन सा वेरिएंट है, कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी क्या दवाई बनेगी, क्या नहीं बनेगी।
करेक्ट? तो जितना ज्यादा हम अननोन से डरते रहते हैं उतना ज्यादा हम चक्रव्यूह में अटकते रहते हैं। वो कैसे होता है? हम कहानियों में उलझ रहे हैं। सो फर्स्ट फियर इज फियर ऑफ अननोन। कल क्या होगा? कल क्या होगा इसका सबसे इजी तरीका है जानने का और समझने का कि कल क्या होगा कभी किसी को नहीं पता चलेगा, ना मुझे ना आपको। तो कल जो होगा वो तो कल ही होगा। तो जो कल होगा उसके बारे में सोच सोच के अपने आज क्यों क्यों खराब करना है आपको? हम क्या करते हैं, अपना आज खराब करते हैं कि कल क्या होगा इस डर से, और इस डर के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर अपना पीस, अपनी टेंशन, अपनी स्ट्रेस के चक्रव्यूह में और फंसते चले जाते हैं। सो कल क्या होगा किसी को नहीं पता, ना मुझे ना आपको। यहाँ जितने लोग हैं या जितने भी लोगों से मैं पूछूंगा किसी को नहीं पता होगा। तो बड़ा सिंपल है, कल जो होगा उसे उस समय जैसे वो आएगा उसे उस समय पार करेंगे। दैट मीन्स वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव। तो जब भी फियर ऑफ अननोन हो, पहला फियर है आपका फियर ऑफ अननोन, आप लिख सकते हैं। तो whenever there's a fear that comes of unknown, तो बहुत सिंपल है, आप खुद को कहें we will cross the bridge once we arrive। मतलब जब मुसीबत आएगी, जब परेशानी आएगी, हम तब की तब उसे झेलेंगे। इतना आत्मविश्वास आपको खुद के अंदर रखना जरूरी है। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, दो चीजें कहते हैं बड़ी अच्छी। पहली, अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि फ्यूचर ही अननोन है, पास्ट तो नोन है ना, जो भी पास्ट में घटित हो चुका है वो नोन है, उसे जानते हो। फ्यूचर अननोन है। तो श्री कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात कही है श्रीमद् भागवत गीता में कि नीदर कैन यू क्रिएट फ्यूचर नॉर यू कैन फोरसी फ्यूचर। ऑल यू कैन डू इज यू कैन वेलकम फ्यूचर विद पेशेंस एंड करेज। मतलब ना हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, ना हम भविष्य को देख सकते हैं, हम सिर्फ भविष्य को स्वागत कर सकते हैं, उसका आलिंगन कर सकते हैं धैर्य और साहस के साथ। All we can do is whatever is going to happen tomorrow, we can welcome it with patience and courage. Exactly the same thing we are doing in times of Corona. We never knew what's going to happen. We don't know what's the medicine. What we are doing is we are welcoming everything with patience and courage. We are embracing Corona with patience and courage. Patience कि अपने वैक्सीनेशन आएंगी, चीजें ठीक होगी। Courage कि चाहे कुछ भी होगा हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हौसला नहीं हारेंगे, जज्बा नहीं हारेंगे। क्लियर? और इसी के साथ साथ एक और बात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस बात को जहन में उतारना बड़ा जरूरी है कि जब जब संकट आएगा भविष्य में, जब जब संकट आएगा भविष्य में, हमारे अंदर से एक शक्ति उत्पन्न होगी उस संकट को झेलने की, पार करने की और आगे बढ़ने की। अब अपनी जिंदगी में पास्ट को उठा के देख लीजिए, जब जब कोई ऐसा संकट आया है, अपने आप से शक्ति उत्पन्न हुई है, आपके अंदर से स्ट्रेंथ आई है, आपके अंदर करेज आया है कि कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को झेलने की, उसको पार करने की और जिंदगी में आगे बढ़ने की। दिस इज नेचुरल ह्यूमन बॉडी माइंड सोल इंस्टिंक्ट कि आपके अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जिस मुसीबत से गुजरेंगे, आप कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके उसको पार कर ही जाएंगे। तभी तो अगर कोई महिला जिनको कुछ लोग पकड़ लेते हैं और तंग करते हैं, अचानक से उनके अंदर से, अगर वो अबला भी हैं, तो कैसे उनके अंदर शक्ति और क्षमता आ जाती है, किसी तरह है तो मार के भाग जाती हैं, या फिर फाइट करके, या फाइट करती हैं या फ्लीट करती हैं, किसी तरह उनको मारती हैं, मार मार के भाग जाती हैं, या फिर किसी तरह अपने आप को बचा लेती हैं। कहाँ से आती है शक्ति? अंदर से शक्ति आती है, वो उस लम्हे पे आती है, उस मोमेंट पे आती है। सो बहुत सिंपल है, योर फियर ऑफ अननोन को झेलने का बेस्ट तरीका यही है, वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव। सो जब भी कोई अननोन का फियर आए तो खुद को कहें वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव। पहले से उसके बारे में सोचने का, प्रिडिक्ट करने का कोई महत्व नहीं है। जब होगा तब की तब देखेंगे, जब समय आएगा तो शक्ति भी आएगी, हौसला भी आएगा, जज्बा भी आएगा। वी विल हैंडल इट एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। गॉड विल गिव अस द स्ट्रेंथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, क्लियर? और कौन कौन से फियर हैं बताओ? चलो, एक फियर तो अननोन का क्लियर हो गया। आगे हम फियर के टाइप्स पकड़ते चले जाएंगे और सारे फियर्स को धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाएंगे। और कौन सा फियर है बताइए तेजस्विनी जी?
fear of failure. फियर ऑफ फेलियर, यस। फियर ऑफ फेलियर क्यों है, चलो इसके बारे में। फियर ऑफ फेलियर और किसी को खोने का डर दोनों साथ में रिलेटेड है? नहीं, एक्चुअली अलग अलग करके बताते हैं। किसी को खोने का डर किस किस के अंदर है, चाहे वो आपके लव्ड वंस हैं, चाहे किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी के माँ बाप है, किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत है, उसे खोने का डर लगा रहता है कि अगर वो इंसान चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। किस किस को ये डर है? हाथ खड़ा करें। अरे अरे अरे, साइड एनर्जी, सो नाइस। सबको ये डर है, किसी ना किसी इंसान को, अपने अजीज इंसान को खोने का डर। करेक्ट। अब ये डर हमारे अंदर क्यों है पता? ये आता है फियर ऑफ अबैंडनमेंट से। लिख लें अगर लिखना चाहते हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि कोई हमें छोड़ के चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम अकेले पड़ जाएंगे, या फियर ऑफ लोनलीनेस भी कह सकते हैं, लेकिन फियर ऑफ अबैंडनमेंट इसका करेक्ट वर्ड है। और यहीं से फियर ऑफ फेलियर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तेजस्विनी जी ध्यान से समझिए। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि कोई हमें छोड़ के चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम उसके बिना रह नहीं सकते। पहली बात तो इतना समझ लेते हैं कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है ना, ये थोड़ा सा उसी के साथ अटैच्ड है, तो हमें इस बात का दुख नहीं होता कि वो इंसान क्यों चला गया, हमें इस बात का दुख होता है कि हमारा क्या होगा क्योंकि वो चला गया। करेक्ट, कि हम अकेले पड़ जाएंगे, हमारा कोई ध्यान नहीं रखेगा। वो इंसान हमारी कितनी परवाह करता था, कितना अटेंशन देता था, कितना केयर करता था। तो एक्चुअली हम अपने बारे में ही सोचते हैं जब किसी की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। हमें लगता है वी नीड दैट पर्सन टू सर्वाइव एंड वी कांट लिव विदाउट पर्सन, वी विल डाई विदाउट द पर्सन, इसलिए हम चिपके भी रहते हैं उस इंसान के साथ। ठीक है, अब समझते हैं फियर ऑफ अबैंडनमेंट कहां से आता है, कि कोई इंसान चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। ये एक्चुअली आता है बचपन से। बचपन से भी, बचपन से आपके पैदा होने से जब हार्ट बीट आपके अंदर आती है, मतलब जब आप अपनी मदर के वूम्ब में होते हैं, वहां से शुरुआत होती है सारी कहानी की। होता क्या है, जब एक बच्चा डेवलप होता है, क्रिएट होता है अपनी मदर के वूम्ब के अंदर, तो बहुत सिंपल है, बच्चे को खुद अपना कोई ध्यान नहीं रखना होता। मम्मी खाना खाती हैं तो बच्चे को खाना मिल जाता है, मम्मी पानी पीती हैं तो बच्चे को पानी मिल जाता है, मम्मी ऑक्सीजन लेती हैं तो बच्चे को ऑक्सीजन मिल जाता है। तो बच्चा को डिपेंडेंट हो जाता है मदर के ऊपर, उसे किसी चीज की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं होती। अपने वूम्ब के अंदर एक बहुत प्यारा सा वाटर बबल होता है जहां बच्चा रहता है, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, किसी चीज की कोई परवाह नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बच्चा बाहर आता है, करेक्ट, जब बच्चा बाहर आता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, बच्चे के लंग्स में पानी होता है, बच्चे को ब्रीथ करवाने के लिए लंग्स में से पानी निकाला जाता है, और कहीं ना कहीं बच्चा पहली बार रोता है। जब पहली बार रोता है तो थोड़ी बहुत सफरिंग महसूस होती है, बच्चा देखने की कोशिश करता है, कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि अंदर बड़ा कुकून में होता है मदर के वूम में। लेकिन जब बाहर निकलता है तो लाइट्स दिखती हैं, साउंड दिखती है, एटमॉस्फेयर दिखता है, एनवायरनमेंट दिखता है, सब कंप्लीटली अलग होता है। और पहली बार जब बच्चा रोता है तो उसे सफरिंग महसूस होती है। करेक्ट, जब पहली बार सफरिंग महसूस होती है कि बाहर तो बड़ी मुश्किल दुनिया है, जब सफरिंग महसूस होती है तो फियर इमर्ज होता है उस सफरिंग से, कि मतलब मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होगा जो मेरा ध्यान रखे। और जैसे ही बच्चा पालने में होता है, उसके बाद मम्मी पापा चाचा चाची ताया ताई सब उसको पैम्पर करते हैं, कोई ख्याल रखता है, कोई कभी उठाता है, कोई कभी उठाता है, कोई कभी खाना खिलाता है, कोई कभी पानी पिलाता है। कॉन्स्टेंटली somebody or the other is taking care of the child. करेक्ट, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, somebody is taking care of you। और बड़ा सिंपल एक टूल होता है बच्चे के पास, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता तो वो रोता रहता है जब उसका कुछ चाहिए होता है। तो वो रोता है तो ऐसा लगता है, जब वो रोता है सफरिंग महसूस करता है तो उसे लगता है कोई ना कोई है जो मेरा ध्यान रख लेगा, कोई ना कोई तो आएगा। तो आवाज लगाई जाती है एक तरह से कि कोई आए और मेरा ध्यान रखे। अब क्या होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो डिपेंडेंट है सब चीजों पे, सब इंसानों पे, कोई ना कोई आके मदद करे। वहां से पहला रिलेशनशिप डिपेंडेंस का शुरू होता है, दैट वी नीड समवन एल्स टू टेक केयर ऑफ अस। इफ वी डोंट हैव समवन एल्स वी विल नॉट सर्वाइव। That's what the child gets embedded in the heart and soul. करेक्ट, यहीं से शुरुआत होती है ना।
उसके बाद बच्चा क्रॉल करता है तो उसे लगता है हाँ फिर किसी के सहारे की जरूरत है, कोई ना कोई आके उसका हाथ पकड़ेगा, कोई उंगली थामेगा, कोई उसको आगे लेके जाएगा, तभी वो चल पाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते बच्चा 2 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का हमेशा डिपेंडेंट ही रहता है। हमेशा उसको लगता है कि कोई ना कोई तो मुझे चाहिए, कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं सरवाइव कर पाऊं। He or she keeps looking for someone who can take care of them so that they can survive, without which they feel that they will not survive and they will die. अब ये बात छोटे होते तक तो सही है कि हमें कोई ना कोई चाहिए इंसान को। जब हम बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, हमारे हाथ पैर अच्छे नहीं है, सलामत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, हम अपना कुछ नहीं कर सकते। बच्चा क्रॉल करता है तब तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा ग्रो करना शुरू करता है। अब कमाल की बात तो यह है, आप ग्रो तो कर जाते हो फिजिकली, लेकिन मेंटली और इमोशनली आप अभी भी चाइल्ड हो, बिकॉज यू स्टिल फील दैट यू नीड समबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ यू, विदाउट व्हिच यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जबकि आज आपके हाथ पैर है। जब बच्चा 15-18 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, सब चीजें करता है, दोस्तों से लड़ता भी है, खुद फाइट भी करता है, खाना भी खुद खाता है अपने हाथों से, कपड़े भी खुद पहनता है, नौकरी करने के लिए भी जाता है, पढ़ाई भी करता है, नौकरी से पैसे भी कमाता है, सारी ह्यूमिलिएशन भी बर्दाश्त करता है, सारी एक्सप्लॉयटेशन भी खुद बर्दाश्त करता है, वहां से फाइट भी कर लेता है, आगे भी बढ़ता रहता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिजिकली खुद का मुकाबला खुद कर सकता है। अब 2 लोग कुछ कहेंगे तो उठा के मुक्का भी मार देगा, करेक्ट? पहले नहीं मार सकता था ना। लेकिन हम फिजिकली ग्रो हो जाते हैं, फाइनेंशियली ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली, मेंटली हम अभी भी बच्चे ही बन के रहते हैं कि हमें कोई ना कोई चाहिए सो दैट वी कैन सर्वाइव। वी कीप लुकिंग फॉर पीपल टू टेक केयर ऑफ अस ऑल द टाइम, and that is what happens in relationships. We keep looking for people to take care of us. That's what a girl does to start finding a boyfriend, because she thinks she can't talk to anybody else in the family. She looks for someone else to take care of her. That's what a boy does in the age of adolescence, starts looking for a girl where he can share all these things, where he needs somebody else to take care of him because he can't share anything with his family. यही होता है ना। तो हम कॉन्स्टेंटली वी कीप लुकिंग फॉर पीपल। दैट इज वाई जब हम कॉन्स्टेंटली लुक फॉरवर्ड करते हैं और कोई इंसान थोड़ा सा अटेंशन केयर दे देता है तो हम चिपक जाते हैं, और जब हम चिपक जाते हैं तो हमें लगता है यही वो इंसान है जो हमें जिंदगी में सब चीजें देगा। और फिर जब चिपक जाते हैं, जब अटैचमेंट हो जाती है, तो फिर अपने आप इमर्ज होना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान चला जाएगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझे खो देगा, तो फिर मेरा क्या होगा? बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ समवन who can take care of us. Unfortunately, we absolutely are equipped to take care of us. That's what we need to understand. और यहीं से शुरू होती है fear of abandonment, क्योंकि हमें कोई ना कोई चाहिए, इसीलिए seeking approval है, इसीलिए people pleasing है, इसीलिए acknowledgement है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम फेलियर हो जाएंगे जिंदगी के अंदर, if we are termed as loser in terms of society, we won't have someone to take care of us. That's why हम लोगों की जजमेंट से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अगर लोगों ने जज किया और जजमेंट में मैं फेल हो गया या फेल हो गई तो मेरा क्या होगा? फिर मेरी तरफ कोई आएगा नहीं, फिर मेरा कोई ध्यान नहीं रखेगा। कॉन्स्टेंटली वी आर सीकिंग अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, जजमेंट फ्रॉम पीपल बिकॉज वी फील वी आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल आवर ओन लाइफ इन आवर ओन वे। इसीलिए एक बीमारी है बहुत तगड़ी, जिसे हमारे पंजाबी में कहा जाता है लोग क्या कहेंगे। करेक्ट? डर आधे से ज्यादा किस बात का है? कि लोग क्या कहेंगे, है ना? तो लोग क्या कहेंगे मतलब क्यों है? लोगों की परवाह इसलिए क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, हमें लगता है कि वो होंगे तो हमारा अस्तित्व है, वो नहीं होंगे तो हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। बचपन में सही था जब हमें किसी की डिपेंडेंस की जरूरत थी, जब छोटे थे। आज तो सब काम खुद कर सकते हो, यू आर फुली इक्विप्ड, लेकिन दिमाग अभी भी इमोशनली एज अ चाइल्ड वहीं पर अटका पड़ा है, दैट वी नीड समबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ अस। इसलिए कॉन्स्टेंटली पीपल प्लीजिंग होती है, कॉन्स्टेंटली हम अप्रूवल मांगते हैं, कॉन्स्टेंटली अप्रिसिएशन मांगते हैं, कॉन्स्टेंटली एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं, और जब ये सब नहीं मिलता तो हम अटक जाते हैं। करेक्ट? फियर ऑफ अबैंडनमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। लोग अपने साथ अकेले क्यों नहीं बैठ पाते? जैसे ही समय मिलता है ना, फट से भाग जाते हैं, कोई कॉफी शॉप भाग जाता है, कोई रेस्टोरेंट भाग जाता है, घर के अंदर टिक के नहीं बैठ सकते अपने साथ, क्योंकि यू ऑलवेज वांट समवन एल्स टू टेक केयर ऑफ यू। आप ढूंढते रहते हो, कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहते हो।
आपकी आंखें सबकॉन्शियसली चलती रहती हैं। आप कॉफी शॉप में भी बैठे हो तो भी ढूंढ रहे हो। ये बहुत सबकॉन्शियसली डिटेल्ड डीप लेवल पे होता है। अपने साथ अकेले टिक के बैठ नहीं सकते, डर लगता है खुद से, लोनलीनेस महसूस होती है। करेक्ट? इसीलिए लोग या तो वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, प्ले स्टेशन में लगे रहते हैं, कोई टीवी देखता रहता है 24 घंटे। टीवी नहीं तो टीवी की आवाज चलती रहनी है पीछे, नहीं तो म्यूजिक चलता रहना चाहिए पीछे। अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए बस किसी की तरह। फियर ऑफ लोनलीनेस एंड फियर ऑफ अबैंडनमेंट, बिकॉज वी नीड समबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ अस। अब बात यहाँ पर आती है, जितना ज्यादा लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, जितना ज्यादा उनकी नीड के चक्कर में फंसेंगे, जितना ज्यादा वी कीप आस्किंग फॉर वैलिडेशन, उतना ज्यादा डर बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इस फियर ऑफ अबैंडनमेंट को समझना और इसकी डीप रूट को जाके समझना कि अब हम उतने वल्नरेबल नहीं हैं जितने पहले थे बचपन में। अब तो हम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो ही गया है ना। अपने हाथों को देखो स्ट्रांग है, अपने पैरों को देखो स्ट्रांग है, अपनी नजर को देखो स्ट्रांग है। सब चीजें खुद कर सकते हो। जब सब चीजें खुद कर सकते हो तो इमोशनली मेंटली भी तो हमें इक्विप्ड होना जरूरी है ना। क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली यूल कीप सर्चिंग फॉर पीपल, then you'll keep asking for validation and keep asking for approval and appreciation, और इसी में डर आता है fear of failure का और fear of being termed as a loser। क्योंकि हमने देखा हुआ है ना कि जो लूजर होता है ना उसका कोई ध्यान नहीं रखता, उसको एक अनटचेबल की तरह करार कर दिया जाता है हमारे परिवारों के अंदर। जो अचीवर होता है ना उसके ऊपर देखो, जैसे सेलिब्रिटीज कैसे होते हैं, अचीवर होते हैं ना, तो क्या होता है दुनिया के आसपास सब लोग उनके आसपास घिरे रहते हैं। 10 लोग उनके आसपास, कोई चाय लेकर आ रहा है, कोई जूस लेकर आ रहा है, उनको सोशल स्टेटस मिलता है, वैलिडेशन मिलती है। तो क्या होता है, आपको लगता है वही बनना है अचीवर, और फिर हम उसके चक्कर में अटक जाते हैं। इसीलिए लोग ज्यादा पोजेशंस एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा पोजेशंस होंगी उतना ज्यादा लोग हमारा ख्याल रखेंगे। इसीलिए लोग सारा दिन बैठ के ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, बिकॉज जितने अच्छे कपड़े पहनेंगे, जितना अच्छा दिखेंगे, उतने 10 लोग आएंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, और हमारी वो नीड फुलफिल होगी। तो जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, तो समझें जरा, you're asking for approval, appreciation and validation from others all the time, correct? So बहुत डीप रूटेड बातें हैं, लेकिन अगर हम इनको समझ जाएं तब जाके जिंदगी में कुछ होगा। यहीं से पोजेशंस आती हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्यूमुलेट करना, और यहीं से अचीवमेंट्स की बात भी आती है कि अगर मैंने 10 साल के अंदर कुछ अचीव नहीं किया तो मैं लूजर हूं, मैं फेलियर। उसको देखो उसने अचीव कर लिया, उसको देखो उसने अचीव कर लिया, हमने अचीव नहीं किया तो हम फेलियर हैं। हम फेलियर हैं जिंदगी में। क्या आप फेलियर हो? सोचो अपने आप से, पूछो अपने आप से। जो सामने वाले ने अचीव किया है, पहली बात तो है आपको वो अचीव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका टैलेंट अलग हो, उसका टैलेंट अलग हो, लेकिन हमने डिनोमिनेटर भी सेम बना दिया है। करेक्ट? कि उसकी 15,000 की नौकरी लगी तो मेरी 17,000 की नौकरी लगनी चाहिए। हम अगेन कंपैरिजन में जा रहे हैं, अगेन वैलिडेशन, अप्रूवल, अप्रिसिएशन सीख कर रहे हैं। ठीक है? सो फियर ऑफ अबैंडनमेंट समझना जरूरी है। बच्चे तक ठीक है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको बहुत डिटेल में जान के समझना जरूरी है इस बात को, that constantly we are looking for people either through appreciation or through possessions accumulation or through achievements। ये तो कर रहे हैं, या तो अचीवमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, या पोजेशंस को इकट्ठा करते हैं, या रिलेशनशिप, और तीनों एक चीज। इन तीनों के तो डर है आपको। किसी को किसी इंसान को खोने का डर है, किसी को ये है कि हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, और किसी को अपने पोजेशंस को खोने का डर है, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे कुछ हो। क्योंकि आपको लगता है ये तीनों चीजें जब चली जाएंगी तो हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखेगा, हमारा कोई ध्यान ही नहीं रखेगा, हमें तो चाहिए। डीप बात है, समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अपने आप को ये कहना और समझाना बड़ा जरूरी है that at that point of time we were not equipped, but now at this moment I'm equipped to handle everything on my own. Positions, possessions and relationships do not define you. They exist because of you. बड़ा सिंपल है ना? Your position, your possessions and your relationship do not define you. They're only there because of you. आपका अटैचमेंट है उस रिलेशनशिप से,
आप चाह रहे हो तब उस रिलेशनशिप को महत्वता मिलती है। मेरी अटैचमेंट है एक कप से, करेक्ट, या एक ट्रॉफी से, मेरी अटैचमेंट है तो वो कीमती और मूल्यवान हो जाता है। मेरी अटैचमेंट है कि वो इस जो जॉब का जो प्रेसिडेंट है ना, ये बनना है मुझे, क्योंकि मेरे दिमाग में वो बहुत बड़ी पोस्ट है। किसी और के दिमाग में शायद वो बहुत छोटी पोस्ट होगी, उसको कोई लेना देना नहीं है उससे। बन जाओ भाई इस कॉर्पोरेट जॉब का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, मुझे क्या लेना देना, मेरे को तो कुछ और करना है जिंदगी में। आप समझे? अब इसका एक डीपेस्ट लेयर, एक तीसरा पॉइंट, फियर ऑफ अबैंडनमेंट के बाद आता है ये जो फियर, तीसरा जो फियर आ रहा है ना, वो आता है डीप रूटेड डिजायर एंड अटैचमेंट से। फियर वाया डिजायर एंड अटैचमेंट, क्योंकि आपने अटैचमेंट प्लेस की उस रिलेशनशिप को, तो आपको खोने का डर है। आपने अटैचमेंट प्लेस की इस बॉटल को, तो आपको इस बॉटल को खोने का डर है। आपने अटैचमेंट प्लेस की एक पर्टिकुलर जॉब को, एक पर्टिकुलर पोजीशन को, तो आपको उसे खोने का डर है। अगर आप अटैचमेंट नहीं रखेंगे उतनी ज्यादा, तो खोने का डर भी नहीं होगा ना। अगर ये कप नॉर्मली रोड पे मिल जाता है 100 रुपए का, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जितनी मर्जी बार गिरे, जितनी मर्जी बार टूटे। लेकिन अगर एक कप मेरी मम्मी अमेरिका से स्पेसिफिकली स्पेशली मेरे लिए कस्टमाइज बना के लेके आई है, तो हमेशा डर लगा रहेगा ना, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए। क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि मैंने अपने आप को इससे अटैच कर लिया। और जब मैंने इसको अटैच कर लिया अपने आप से, जब मैंने अपने आप को इससे अटैच कर लिया, तो क्या हुआ? कैद मैं हो गया कि कैद कब हो गया? सोचो। डरता मैं रहता हूं हमेशा। डर आपको कैद करके रखता है। फियर पैरालाइजेस यू। इतना समझ में आता है? फियर्स पैरालाइजेस यू, आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो फियर ऑफ अटैचमेंट जो है ना, इसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। 100% तो नहीं छोड़ पाओगे। आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट। लेकिन डिटैच नहीं हो पाओगे, तो एटलीस्ट अगर 100% अटैच्ड हो, तो कम से कम 50% तो कर ही सकते हैं उसको। बैलेंस योर अटैचमेंट सो दैट, देखो मेरी बात सुनो, किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी पोजीशन से अगर अटैच हो जाते हो और उसके बाद वो आपको पैरालाइज कर देता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, आपको दम दम आपका घुटता रहता है रोज रोज, तो क्या वो सही है आपके लिए? खुद को रोज क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करवाना क्या सही है? या इससे बेहतर यह है कि 100% की जगह 50% अटैच हो जाते हैं, थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। आगे बढ़ गए थे जाने अनजाने में जिंदगी में, अब थोड़ा पीछे भी हट जाते हैं, थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा सा संतुलन बना लेते हैं, ताकि हम तो घुट घुट के ना मरे, हम क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस ना करें, हमें फियर पैरालाइज ना करे। करेक्ट? आगे बढ़े थे आप, अटैचमेंट आपने की थी, तो पीछे भी आपको ही आना, कोई और नहीं आएगा। बुद्धिज्म में एक फिलॉसफी है, बुद्धिज्म के बारे में पता है? बुद्धिस्ट मंक्स के बारे में, वहां पे एक फिलॉसफी है, इट्स कॉल्ड द मंडला फिलॉसफी, जहां पे एक मंडला बनाया जाता है, बहुत खूबसूरत मंडला। पता है आपको? एक बहुत खूबसूरत, समझ लीजिए एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेयर्ड रंगोली ऐसे बनाई जाती है। 12 दिन तक सारे बुद्धिस्ट मॉन्क एक बुद्धिस्ट शाला के अंदर बैठते हैं। कुछ 15-20 मंक्स जो भी बहुत ट्रेंड होते हैं, वो सारा दिन बैठ के 12 दिन तक 24 घंटे बैठ के वो रंगोली को बनाते हैं, उस मंडला को बनाते हैं। छोटे से छोटा डिजाइन, छोटे से छोटा कलर, आप गूगल पे जाके पिक्चर्स और वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एवरी इंट्रिकेसी पे ध्यान दिया जाता है, इतने प्यार, इतनी शिद्दत, इतनी मोहब्बत से उसे बनाया जाता है। 12 दिन तक जी जान लगा के उसे बनाया जाता है। आपको पता है 13वें दिन क्या होता है? 13th डे। 13th डे वही बुद्धिस्ट मॉन्क जिन्होंने अपने हाथ से वो मंडला बनाया है, वो अपने हाथ से उसे मिटा देते हैं, खुद ही उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? सो दैट दे डू नॉट गेट अटैच्ड टू इट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट इन बैलेंस। कि आपने ये बनाया बड़ा मुश्किल है। आपने अगर पेंटिंग बनाई हो, कि अपने हाथ से उसको खराब कर पाओगे? कि अपने हाथ से उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे? नहीं 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 नहीं। इतना प्यार मोहब्बत हो जाएगी, ऐसा लगेगा, और 24 घंटे दूसरों को दिखाते रहेंगे, देखो मैंने बनाई, देखो मैंने बनाई, देखो मैंने बनाई। करेक्ट? लेकिन अपने हाथ से मिटाने के लिए यहाँ पर करेज चाहिए होता है। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट टीचेस यू टू बैलेंस योर अटैचमेंट।
कि 12 दिन तक जब काम किया तो मोहब्बत से काम किया, शिद्दत से काम किया, तपस्या से काम किया, लेकिन 13वें दिन उसको मिटा दिया ताकि कहीं मैं इसके साथ चिपक और अटक ना जाऊं, क्योंकि फिर ये मंडला मुझे कैद कर देगा। मतलब जब घर के बाहर दिवाली पे मेरी वाइफ रंगोली बनाती है ना, तो पता कैसा होता है, तो 2 दिन तक किसी को इजाजत नहीं होती, आसपास थोड़ा फटके भी, कहीं पैर ना लग जाए, कहीं हाथ ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तुम खराब ना कर दो, तुम ये ना कर दो, तुम वो ना कर दो। करेक्ट? हुआ क्या? रंगोली ने आपको कैद कर लिया, आपने रंगोली को कैद नहीं किया है। करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू बैलेंस योर अटैचमेंट। इसमें एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ सको, जो बहुत श्रीमद् भागवत गीता से आता है, विच इज कॉल्ड कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब सारा जो फियर है ना, वो रिजल्ट का होता है हमेशा, कि रिजल्ट मतलब जो भी आपने काम के रंगोली बनाई, तो फियर रिजल्ट का है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या कहता है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब यह है कि अगर मुझे रंगोली बनाने में मजा आता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, मुझे तो रंगोली को बनाने में मजा आता है। आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट रंगोली। जैसे अगर मुझे सेशन करने में मजा आता है तो 8 लोग आए, 800 लोग आए, 8 करोड़ लोग आए, तो भी उतनी शिद्दत, उतनी ही तपस्या रहेगी जितनी अभी। करेक्ट? या मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि 10 लोग देखेंगे या 10 लाख लोग देखेंगे या कोई भी नहीं देखेगा। मुझे तो उसको क्रिएट करने में, उस नॉलेज को शेयर करने में, उस विजडम को शेयर करने में बहुत मजा आता है, उसी में मुझे खुशी मिल जाती है। जैसे फुंगसुक वांगडू कहता था ना 3 इडियट्स में, क्या कहता था वो? अगर मशीनों से प्यार है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर साइंस से प्यार है तो क्या फर्क पड़ता है, ये नौकरी या वो नौकरी, या ये नौकरी या वो नौकरी। प्रॉब्लम क्या है, जब नौकरी और पे पैकेज से प्यार हो जाता है तो साइंस और मशीनें पीछे छूट जाती हैं। तो जितना ज्यादा रिजल्ट से अटैच्ड होगे उतना ज्यादा रिजल्ट फियर में रखेगा आपको। जितना ज्यादा प्रोसेस से प्यार करोगे उतना ज्यादा लिबरेटेड और आजाद महसूस करोगे। तो अगर अपने आप को फियरलेसनेस और लिबरेशन और आजादी में डालना है तो एंजॉय द प्रोसेस एंड डिटैच फ्रॉम द आउटकम। मतलब रिजल्ट जरूरी नहीं है, प्रोसेस जरूरी है। अगर खाना बनाने में मजा आता है तो क्या मायने रखता है कि किसी ने अच्छा खाना, उसकी तारीफ की या नहीं तारीफ की। आपको खाना बनाने में मजा आना चाहिए, आपको खाना बनाने में सुकून मिलना चाहिए, आपको खाना बनाने की इच्छा होनी चाहिए, बस। क्लियर है? और कौन सा फियर है? चलो एक और चीज, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ जी बोलिए। बाद में एंड में पूछ लेना, मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है? इसके आगे मैं और टाइप्स ऑफ फियर बता देता हूँ आपको, बाकी सब म्यूट कर दें खुद को। यस। इसके बाद आता है एक फियर ऑफ पेन। पेन से बड़ा डर लगता है हमें, पेन से घबराहट हो जाती है, किसी प्रकार की पेन नहीं चाहते हैं। हमारा ह्यूमन माइंड कॉन्स्टेंटली कीप्स टेलिंग यू कि प्लेजर में रहो, प्लेजर में रहो, कोकून में रहो, कंफर्ट में रहो, पेन नहीं चाहिए। करेक्ट? लेकिन 2 चीजें बड़े जरूरी हैं। पहली, पेन नहीं होगी तो क्या जिंदगी में कभी ग्रोथ होगी? सोचो जरा, पेन से गुजरे हो तभी तो ग्रोथ हुई है आज। जब जिम जाएंगे, क्या जिम में जाके मैं 1 किलो का डंबल लेकर रोज ऐसे ऐसे करता रहूंगा तो बॉडी बन जाएगी? या 1 किलो के बाद 2 किलो, 2 किलो के बाद 5 किलो, 5 के बाद 10, 10 के बाद 25, 25 जब उठाते हैं तो बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता है, लेकिन जब तक वो पेन होगा नहीं तो ग्रोथ कैसे होगी, सेल्स ब्रेक कैसे होंगे? जब तक सेल्स ब्रेक नहीं होंगे तो नए सेल्स कैसे जर्मिनेट होंगे? तो मतलब यह पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम इट। हम उससे भागते हैं। भागने का मतलब ही तो डर होता है कि पेन के आने से पहले ही हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। जैसे मेरे घरों में होता था, पापा को डर लगता था कि जिस रास्ते से जा रही है ना गाड़ी और ड्राइवर, रोज उसी रास्ते से घर से दुकान तक वहीं से जाएगी, रास्ता बदला नहीं जाएगा, क्योंकि अगर रास्ता बदल दिया तो पता नहीं वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम आ जाएगी तो पहले से उसके बारे में डर शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है।
कि जो रास्ता अपनाया है बस वही रास्ता चलना है, क्योंकि वो रास्ता कंफर्टेबल है, पास्ट है, नोन है, अननोन से डर लगता है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई पेन आएगी, तो पेन से भागते रहते हैं। लेकिन जब तक नया रास्ता खोजोगे नहीं, नए रास्ते से गुजरोगे नहीं, पेन से गुजरोगे नहीं, तब तक ह्यूमन माइंड ग्रो कैसे करेगा? जब नए रास्ते से गुजरोगे तो यहाँ पर एक कंप्यूटर की मेमोरी चिप में वन मोर डेस्टिनेशन ऐड हो जाएगा, वरना उससे पहले पहले तक तो जो पहले था वही था। यू एडेड समथिंग टू इट, यू इवॉल्व, यू ग्रू। सो ग्रोथ के लिए पेन जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पेन को इनवाइट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम जब भी पेन आएगी उसे एम्ब्रेस करेंगे इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट। भागने से डर पैदा होता है, एम्ब्रेस करने से डर खत्म हो जाता है। जब आएगी देखेंगे, पेन से गुजरेंगे, गुजरना जरूरी है, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। और दूसरा, पेन जरूरी है। देखो, पेन से ही तो एम्पैथी और कंपैशन डेवलप होता है। जब मैंने अपने डैड की मृत्यु अपने बर्थडे वाले दिन बर्दाश्त की, उस पेन से गुजरा, तभी तो मैं किसी इंसान ने अपने अजीज को खोया हो, किसी लव्ड वन को खोया होगा, तो मैं उस पेन को महसूस कर पाऊंगा। If I have not gone through any pain, will I ever be able to understand somebody else's pain to that level? So empathy, compassion, deepest level of love, deepest level of understanding things from somebody else's perspective, मतलब उसके शूज में जाके चीजों को समझना कैसे होता है, ये वही लोग कर सकते हैं जो अपनी पेन से गुजरे और दूसरे की पेन को महसूस कर सकते हैं। अगर आप हर कंफर्ट जोन में गुजरे हो और कोई पेन नहीं हुई है, तो क्या आप किसी और को समझ पाओगे? एक राजा जो चार दीवारी में सिर्फ बंद रहता है, प्रजा के पास जाता नहीं है, उनकी पेन को समझ नहीं सकता, तो क्या वो महसूस कर पाएगा जिसने कभी खुद ही पेन बर्दाश्त न की हो? आपने पेन बर्दाश्त की है, तभी तो आप दूसरे की पेन महसूस कर पा रहे हो, तभी तो वहां से कनेक्शन होता है, वहीं से एम्पैथी, लव, डीपेस्ट कंपैशन महसूस होगा। सो पेन इज एसेंशियल टू एम्ब्रेस कंपैशन, एम्पैथी एंड लव इन योर लाइफ। So fear of pain is essential. Embrace it. Okay? What else? और कौन सा fear है? Desire, attachment. एक और important fear. Fear of past. बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा past कहीं वापस ना आ जाए। इस बात का डर लगा रहता है कि जो past में हो गया है कहीं वो वापस ना आ जाए। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है, जो पास्ट में हो चुका है ना, वो हो चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। एग्जैक्टली उस फॉर्म में तो कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड एवर एवोल्यूशनरी है, ये हमेशा बदलता रहता है। जैसे रोज सनराइज और सनसेट अलग समय पर होता है ना, अलग लम्हे पे होता है, हजारों सालों में भी कभी सेम टाइम पे सेम लम्हे पे नहीं हुआ होगा। तो ऐसे आपका पास्ट ना सेम नहीं क्रिएट हो सकता, उसका फॉर्म चेंज होके वापस आ सकता है। वो भी इसलिए वापस आता है क्योंकि जब आप अपने पास्ट के लेसन्स नहीं सीखते हो। आपकी पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, हम उस घटना से चिपक जाते हैं, हम उस घटना की सीख को जिंदगी में नहीं अप्लाई करते। अगर उस घटना की, उस वाक्य की, उस इंसिडेंट की सीख को मैंने अप्लाई कर लिया, मैं अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर देता हूँ, फिर वो वहीं के वहीं ड्रॉप हो जाता है पास्ट। हम क्या करते हैं, उस घटना, उस वाक्य, उस इंसान के साथ चिपक जाते हैं और अटक जाते हैं। That's why we keep fearing, कहीं दोबारा ना हो जाए, कहीं दोबारा ना हो जाए, कहीं दोबारा ना हो जाए। दोबारा अगर होगा ना तो सेम नहीं होगा, अलग तरीके से होगा, अलग फॉर्म में होगा। क्या आपकी जिंदगी में एग्जैक्टली सेम चीज कभी हुई है? सोचो, किसी इंसान की जिंदगी में एग्जैक्टली हो सकता है, कुछ लोग एलियंस हो यहाँ पर कि एग्जैक्टली सेम चीज हुई हो, कि अगर 15 जुलाई 2010 को एक इंसिडेंट हुआ है, तो 15 जुलाई या 25 जुलाई 2015 को एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट हुआ, एग्जैक्टली सेम, हूबहू, आइडेंटिकल, डिट्टो। कभी भी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। दैट बेसिकली मींस पास्ट वहीं का वहीं छूटना शुरू हो जाता है। इट इज डन एंड डस्टेड विद। वो उस समय का लम्हा था, उस समय की बात थी आपके दिमाग में, वो खत्म हो गई। हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी चिप है ना, याददाश्त, उस याददाश्त में स्टोर कर लेते हैं चीजों को और बार बार उसको रिलीव भी करते हैं। इसीलिए पेन शुरू होती है यहाँ से, इसीलिए डर लगता है पास्ट से, इसलिए घबराहट होती है पास्ट में जाने की, क्योंकि हम जो पास्ट में घटित चीजें
जो हो चुकी हैं, एक बारी तो हो चुकी है तो बर्दाश्त कर लिया, दूसरी बार उस टेप को रिवाइंड करते हैं और उसको दोबारा सच मानते हैं। अब ये दिमाग की दूसरी वाली कहानी है। एक कहानी है अननोन की, फ्यूचर की, ये कहानी है पास्ट की, उस समय की हकीकत की, लेकिन 2 साल बाद की तो कहानी है ना दिमाग में, उस कहानी को बदल दो, चीजें बदल जाएंगी। सिंपल कहानी है, किसी से अफेयर था, उसके बिना मैं जिंदगी में नहीं रह पाई, इसलिए मेरी हालत बुरी है। कहानी बदल देते हैं, अच्छा हुआ स्यापा खत्म हुआ, इंसान चला गया मेरी जिंदगी से, अब मैं लिबरेटेड हूँ, अब मैं खुश हूँ, अब मैं फ्री हूँ। बहुत परेशान कर रखा था, बहुत टॉर्चर कर रखा था, बहुत प्लीडिंग और बेगिंग होती थी, थैंक गॉड द पर्सन लेफ्ट मी, नाउ माय लाइफ इज बेटर। इट्स अ स्टोरी, द मोमेंट यू चेंज द स्टोरी, लाइफ चेंजेस। Thank God this job did not happen because now I can do my business. Thank God I failed in this exam because I know what I want to do in my life now. Thank God this person left me because now I have a chance to get to somebody who respects and values me. It's a story. कहानी, कहानियां बदलते जाओगे, जिंदगी बदलती जाएगी। पुरानी कहानियों में अटके रहोगे तो फिर खुद को दुख देते रहोगे, इसीलिए सेल्फ विक्टिमाइजेशन होता है, सेल्फ पिटी होती है। ओके, क्लियर? सो फियर ऑफ पास्ट। एक और आखिरी फियर है, फिर हम थोड़ा सा फियरलेसनेस की तरफ बढ़ेंगे। ये हमने पब्लिक स्पीकिंग में भी कहा है, फियर, ये एक्चुअली फियर ऑफ जजमेंट, वैलिडेशन और अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन। वो जो पिछला वाला फियर था ना, अबैंडनमेंट, को उसी से रिलेटेड है, जिससे हम फियर ऑफ स्टेज कहते हैं, या स्टेज फ्राइट। घबराहट हो जाती है किसी के सामने बात करने के लिए, डर लगता है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग जज करेंगे, अपनी बात कहने में घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि डर लगता है। फिर वही अबैंडनमेंट का फियर है कि हमें कोई ना कोई चाहिए, तो हम सबको पीपल प्लीजिंग करना चाहते हैं, सबका ख्याल रखना चाहते हैं, सबका ध्यान रखना चाहते हैं, ताकि वो हमारा ध्यान रख सके बस। बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा करते हैं दूसरों के लिए, इसलिए नहीं कि वो महान है, ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि अंदर डर बहुत ज्यादा है। ये डर है कि हम जरूरत से ज्यादा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम कार्य करेंगे तो शायद हमें 10%, 20%, 50% कुछ तो मिलेगा, क्योंकि हमें अपनी जरूरत है। हम ज्यादा से ज्यादा न्यौछावर करते हैं। We keep showering people with so many gifts because we feel if we give them, then we'll also get something in return. At least if I give, अगर मैं आईफोन दूंगा तो कम से कम मुझे ओप्पो और वीवो तो मिल ही जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हम अपने बारे में ही सोचते हैं। Human brain always keeps looking for a mutual transaction in some form or the other. ठीक है? सो बहुत सिंपल है। ये स्टेज फ्राइट भी एग्जैक्टली इसलिए होता है क्योंकि जजमेंट, वैलिडेशन, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो जब आप उस चक्रव्यूह को थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करेंगे, तब जाके ये सारे स्टेज फ्राइट भी अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि तब हमें परवाह नहीं होती कि कौन क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है, कैसा कर रहा है। वो हमारे साथ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा अस्तित्व उनके साथ जुड़ा नहीं है, मेरा अस्तित्व अपना है। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा अपना अस्तित्व है, लेकिन ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। हम बिना जरूरत के किसी से जुड़ना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन जब हमारी मांगे होती है ना, जरूरतें होती हैं, वहीं तो परेशानी होती है। लव इज नॉट अ नीड फ्रॉम एनीवन। Love is when you feel it in your heart and soul, and then you share it with others, not something that you keep asking and begging and pleading people that listen, please care for me, जो again बचपने वाली mentality जिसकी हमने बात की है। Okay, now coming to the fearlessness, बड़ा सिंपल है, इतनी सारी बातें बता दी हैं, काफी सारी चीजें उसके साथ आप एड ऑन्स कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स और निकाले हैं कि अगर आपको फियरलेसनेस में जाना है, मतलब निर्भयता यानी निडरता में जाना है, तो कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है जो महात्मा गांधी जी कहते थे, सच बोलना बड़ा जरूरी है। झूठ का मतलब है कहानियां, सच का मतलब है हकीकत। सच का मतलब होता है निडरता, सच का मतलब होता है करेज, सच का मतलब होता है निर्भयता। तो अगर जिंदगी में अपने डरों को छोड़ना चाहते हो तो सच बोलना सीखना पड़ेगा और सच को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना निडरता आती नहीं है। सच के लिए बहुत जिगर चाहिए होता है, लेकिन ये जिगर से ही जिंदगी में फियर्स ड्रॉप होते हैं। इस करेज से ही तो फियर्स ड्रॉप होंगे। फियर का ऑपोजिट क्या होता है? करेज, साहस। क्योंकि फियर तो कुछ है नहीं, फॉल्स एविडेंस है। साहस क्या होता है? जैसे भूत,
भूत कुछ है थोड़ा ना, लेकिन जिसमें साहस होता है वो कहता है बुलाओ, मैं भी देखता हूँ, चलते हैं आज ग्रेवयार्ड के अंदर, देखते हैं जरा कौन है। साहस, जब साहस होता है तो रात रात भर वो जागता है और देखता है कि कुछ भी तो नहीं है। उस दिन से सारा भूत दिमाग से खत्म हो जाता है। लेकिन जिसको साहस नहीं होता वो क्या करता है, जरा सी आवाज आती है ना खन खन की, ऐसा लगता है कोई आत्मा आ गई है, ऐसा लगता है कोई आ गया है। जरा सी कोई व्हाइट साड़ी में गुजरेगा या कोई इंसान गुजरेगा, ऐसा लगेगा देखो साक्षात मैंने तो कहा था भूत है, भूत आ गया। बड़ा सिंपल है ना, फॉल्स है वो। जैसे ही साहस आता है फॉल्स एविडेंस अपने आप खत्म हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, सच। सच बोलने का प्रयास जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतनी निडरता आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। ओके, एवरीवन राइटिंग डाउन? कौन कौन लिख रहा है पॉइंट्स? तेजा जी आप लिख लीजिए और तेजस्विनी जी। ओके, आज के लिए ये दो हैं, तेजा जी और तेजस्विनी जी, सब पॉइंट्स लिख लीजिए और पॉइंट शेयर कर दीजिए। हरमन इज आल्सो राइटिंग, वंडरफुल। We will repeat the points as well once the session ends, and please share it with us so that we'll also send the word file to everyone. सबको दे देंगे ताकि सब अपने पॉइंट्स बाद में मैच भी कर लेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट फॉर फियरलेसनेस। जिंदगी में थोड़ा हायर पर्पस रखना जरूरी है अगर फियर से बाहर आना है तो। हायर पर्पस का मतलब होता है कभी अपने से ऊपर उठ के कुछ सोचना, अपनी ईगो को ड्रॉप करना। होता क्या है, हम फंसे इस चक्र में रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ ही तो है सारी चीजें, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, सारी चीजें मैं से ही शुरू होती हैं। तो बड़ा सिंपल है, इस मैं को ड्रॉप करना पड़ता है और उससे ऊपर उठना पड़ता है। तो जैसे ही आप मैं को ड्रॉप करते हो, हम में आ जाते हो, या मैं को कंप्लीटली ड्रॉप करने का धीरे धीरे प्रयास करते हो, अपने हायर पर्पस की तरफ ध्यान रखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप में से किसी को पता है कि युवराज सिंह जब 2011 वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो उनको कैंसर से उस समय गुजर रहे थे और उनको खून की उल्टियां हो रही थी while playing the quarterfinals and the semifinals? आपको पता है ना? अब सोचो, मैं मतलब मी मतलब ईगो मतलब युवराज सिंह कितनी तकलीफ में है। बॉडी जवाब दे रही है, माइंड जवाब दे रहा है, सब कह रहे हैं कि छोड़ दो, लेकिन दिमाग में एक हायर पर्पस है। करेक्ट? सोचो कितनी पेन हो रही होगी, उस पेन से कितनी घबराहट और डर हो रहा होगा, लेकिन सारी पेन और घबराहट जीरो हो गई जब हायर पर्पस यहाँ पर आ गया कि ये वर्ल्ड कप हमें जीतना है, देश के लिए जीतना है और सचिन तेंदुलकर को इसका ट्रिब्यूट देना है जिन्होंने 30 साल हमारी सेवा की है। तो क्या हुआ, एक हायर पर्पस आया दिमाग के अंदर, सारी पेन खत्म हो जाती है, सारा फियर ढह जाता है। सो डेवलप अ हायर पर्पस इन योर लाइफ कि मैं से ऊपर उठ के मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। व्हेन यू अटैच योरसेल्फ टू अ हायर पर्पस, then you don't get scared of pain because the higher purpose takes over. Okay, next. जैसा मैंने आपको बताया, pain is essential to grow and pain is essential to develop empathy and compassion. So embrace pain. पेन जरूरी है ग्रोथ के लिए, पेन जरूरी है एम्पैथी, कंपैशन, लव डेवलप करने के लिए दूसरों के प्रति। तो पेन को एम्ब्रेस करना है, अगर आ रही है तो आने देते हैं, उससे घबराना नहीं है, बस उसको इनवाइट नहीं करना है, उसका दरवाजा खटखटा के बुलाना नहीं कि आ जाओ, लेकिन अगर वो आ जाती है तो डर के भागना नहीं है, तो उसको फेस करना है, बिकॉज पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, ऐसे ही एक सिक्के के दो पहलू प्लेजर और पेन है। कभी पेन आएगी, कभी प्लेजर आएगा। खाना बनाने में प्लेजर मिलता है ना, खाना खाने में प्लेजर मिलता है, लेकिन कभी कभी चाकू से हाथ कट जाता है, तो क्या खाना बनाना छोड़ देते हैं? सिंपल है, आपने क्या किया, पेन को एम्ब्रेस कर लिया, इमीडिएटली हाथ या उंगली कटी, पानी में रख दिया, या डॉक्टर को बुला लिया, या पट्टी बांध ली, या मरहम लगा ली, खत्म। इतना ही सिंपल है ना, और 5 मिनट भी नहीं लगते आपको दोबारा खाना बनाने की तरफ प्रति होने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, आपने उस समय पेन को एम्ब्रेस कर लिया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इंजेक्शन लगने से पहले, अभी दर्द हुआ है नहीं, अभी इंजेक्शन लगा नहीं, उससे पहले इतनी चीखें निकल जाती हैं। अभी सोचो, इतनी सी तो सिरिंज है, इतना बड़ा शरीर है आपका, कहाँ घुस जाएगी वो सिरिंज कितनी लंबी, लेकिन इतनी सी पेन बर्दाश्त नहीं होती। सो इंक्रीज योर स्टैमिना फॉर पेन। सिरिंज ही तो है, लगने तो दो पहले, लगने के बाद जो फिजिकल पेन, जो दर्द महसूस होगी वो जायज है, पेन इज इनएविटेबल, वो होगी,
लेकिन सिरिंज लगने से पहले ही आपका दिमाग कहता है नहीं 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 नहीं, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, भी ऐसा हो जाएगा वैसा, कुछ भी नहीं होगा। लाखों करोड़ों लोग रोज सिरिंजेस लगाते हैं, तो क्या होता है उनको? कुछ भी नहीं होता। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो पता नहीं यहाँ पे कितने छेद कर देते हैं, वो यहाँ पर लगा रहता है, ये आईवी वो आईवी ये आईवी, कितनी बारी तो नीडल्स घुसती हैं आपके अंदर, तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आपका दिमाग बस आपको डराता रहता है। समझिए जरा, योर ईगो always wants to protect you, your ego and your mind, which is a false sense of protection, कि किसी तरह कुछ हो ना बस, इसलिए आपको घर के अंदर बंद करके रखती है, which is a false sense of ego, always falsely trying to protect you। इसीलिए लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, सब जगह आप हमेशा जीतना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ, कि अगर मैंने इससे कोई बात कही और इस कॉन्वर्सेशन में, इस आर्ग्यूमेंट में, इस डिबेट में, इस डिस्कशन में मेरी बात नहीं रखी गई, तो मतलब मेरा अपना अस्तित्व कोई नहीं है। मेरा अपना अस्तित्व कोई नहीं है तो क्या हुआ? मुझे कोई अप्रूव नहीं कर रहा, मेरी बात को झुठला दिया गया, मेरा कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मेरी कोई अप्रिसिएशन नहीं है। मतलब अगेन मुझे तो सबके सब अलग कर देंगे, मेरे को तो अछूत करार दे देंगे, मेरे को तो अनटचेबल बना देंगे। ऐसी सोचे दिमाग में चलती है ना, कि हम अलग हो जाएंगे, हमारा ध्यान नहीं रखा जाएगा। We always keep searching for people to keep taking care of us. So अपनी false sense of ego को drop करते चले जाना है, क्योंकि it will always want to protect you and put you in one cocoon. कोकून से बाहर निकलना है। कोकून से बाहर निकलेंगे तभी सामने जिंदगी दिखेगी, तभी हम जिंदगी में कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे, तभी डरों का सामना कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ पॉइंट है कि अगर खुद से कभी कुछ नहीं समझ में आता तो सरेंडर करना बड़ा जरूरी है। मतलब समर्पण जिसे कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा डर है और लगता है कि नहीं हम उसको झेल पा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हजारों चीजें दिमाग में चल रही हैं, तो सरेंडर, हैव supreme faith either in this universe or in this Brahman or in this God or in this universe or in this divinity, जिसको आप मानते हो उस पे कंप्लीट विश्वास करो, सरेंडर कर दो। क्योंकि सरेंडर में ईगो ढह जाती है। सरेंडर का मतलब होता है भाई आप ही देख लो, अभी मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, तो मतलब क्या हुआ? आप देख लो, मतलब मैंने अपनी ईगो को ड्रॉप कर दिया, मैंने अपने मैं को ड्रॉप कर दिया और आपके साथ जुड़ गए। इसीलिए लोगों को पूजा पाठ के अंदर बहुत सुकून महसूस होता है, भगवान के साथ सुकून महसूस होता है, प्रे करके सुकून महसूस होता है, कि वहां ईगो ड्रॉप हो जाती है। इसलिए पूजा पाठ के समय मेडिटेशन महसूस होती है कि नाउ यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैंने हाथ जोड़ दिए हैं, मैंने प्रसाद चढ़ा दिया 101 रुपए का, अब आप देखो आपको क्या करना है, आपको मेरी नैया पार करानी है, आपको मुझे जॉब दिलवानी पड़ेगी। अभी हम तो ऐसा भी करते हैं। खैर, 101 का प्रसाद, 501 का प्रसाद, करेक्ट। खैर उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, वो अलग सेशन है, अलग टॉपिक है। बट all I'm trying to say is when you can't handle, when you keep getting scared, when you are in state of fear, surrender and samarpan to this universe. आपका है, पैदा भी आपने किया है, ख्याल भी आप ही रखो। कहते हैं कि जब ईश्वर नहीं, अगर ईश्वर नहीं है तो उसका जिक्र क्यों? जब ईश्वर नहीं तो जिक्र क्यों? लेकिन जब ईश्वर है और उसमें मानते हो और विश्वास करते हो, जब ईश्वर है तो फिर फिक्र क्यों? जब ईश्वर है, उसमें मानते हो, विश्वास करते हो, फिर किस बात की फिक्र? फिर तो समर्पण है सब चीज। फिर आगे की आगे देखेंगे, ऊपर वाले में विश्वास है तो आपने कहीं ना कहीं नैया पार करवा ही देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट फियर्स एंड फियरलेसनेस। इतना क्लियर है सबको? ओके, तो पहले पॉइंट्स रिपीट कर लेते हैं, फिर किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकता है, एंड देन वील आल्सो टॉक अबाउट द लर्निंग ऑफ द डे। ओके, तेजा जी, कैन यू जस्ट रिपीट द पॉइंटर्स सो दैट एवरीवन कैन चेक, सब चेक कर लें कि कुछ छूट ना गया हो। Yes, sir. So first we saw the definition of fear. Wonderful. The acronym that states false evidence appearing real. Then we discussed about the types of fear. So in that, the first one was the fear of unknown or the fear of uncertainty.
सर उसके बारे में थोड़ा कुछ लिखा है, so should I read that out or just? नहीं, I think स्ट्रक्चर सबको पता लग गया है, डिटेल सबको पता है। अगर आप 1.11 लाइन है कुछ बताना चाहते हो तो बता दो, डिटेल्स सबको पता ही है। अभी जब हम फियर ऑफ अनसर्टेनिटी के और अननोन की बात करते हैं तो जो एक आध लाइन आपने पॉइंटर लिखे है वो आप बता सकते हैं उसके डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में बेसिकली। So the highlighted line that I've written is we will cross the bridge once we are. हाँ, देखो बड़ी अच्छी बात है, we will cross the bridge once we arrive. Fear of unknown. Next. Next is fear of failure or fear of losing a loved one, and in that we talked about fear of abandonment. Absolutely. Then we talked about fear of abandonment, जिसके अंदर fear of losing someone and the fear of failure, दोनों चीजें आती हैं। इसके आगे कुछ लिखा तो बता दो। इसके आगे ये लिखा है कि we are well equipped to take care of ourselves, so we do not ऐसा pointers में लिखा है कि we think we need someone else to take our care, but we are enough for ourselves. That means that we are equipped and capable of taking care of ourselves. हमें ऐसा लगता है क्योंकि बचपन में ही हमारा दिमाग अटका पड़ा है, वहीं पर इमोशनली मेंटली वहीं पर है, फिजिकली फाइनेंशियली ग्रो कर गए हैं। हमें लगता है कि कोई ना कोई हमें चाहिए जो हमारा ख्याल रख सके, जबकि वी आर फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, इमोशनली, मेंटली capable to take care of ourselves. Okay, wonderful. आगे बढ़ते हैं। One more line, sir, I've written under that, which you said, position, possession, and relations do not define you. They exist because you are. Absolutely. Position, possession, and achievement. Position, possession, and relationships do not define you. You define them. जितनी ज्यादा हमारा उनसे अटैचमेंट और रिलेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा वो हमारे लिए मायने रखते हैं। जितना ज्यादा आप अटैच एक पोजीशन से उतनी ज्यादा मायने, जितनी ज्यादा आप अटैच एक अचीवमेंट से उतनी ज्यादा आपके मायने, जितनी ज्यादा आप अटैच एक रिलेशनशिप से उतनी ज्यादा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फियर बिकॉज ऑफ डिजायर्स एंड अटैचमेंट। यस, फियर बिकॉज ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट। इसी का एक और डीपेस्ट लेयर कि जितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी उतना ज्यादा हम उस इंसान को खोने का, उस अचीवमेंट को या उस पोजीशन को या उस पोजीशन को खोने का डर रहता है। करेक्ट। और इसी के अंदर मंडला फिलॉसफी भी आती है बुद्धिज्म की, जिसमें हम 12 डेज और 13th डे की बात करते हैं। करेक्ट। और बताएं। So one more line that I've written under this is that enjoy the process and detach from the outcome. Absolutely. इसी के साथ एक और पॉइंट आता है, enjoy the process and detach from the outcome. मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जितना ज्यादा प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, जितना ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगा आपका आउटकम से, उतना ज्यादा मजे आएंगे। जितना ज्यादा मजा आएगा उतना फियर कम रहेगा, क्योंकि मजे मतलब एंजॉयमेंट और फियर साथ साथ नहीं टिक सकते। करेक्ट। जैसे नक्श बलिए हम लोगों ने जीता इसलिए क्योंकि आई वॉज एंजॉइंग इट सो मच, नॉट बिकॉज वी डिड नॉट गो इनटू द नक्श बलिए कि हमें जीतना है और लोगों को प्रूव करना है दैट वी आर दिस डांसर एंड दैट डांसर, जस्ट बिकॉज आई रियलाइज ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा कि अपने लव्ड वन के साथ डांस करो और पूरी दुनिया देख रही है। इससे बेहतरीन मौका क्या होगा अपना टैलेंट दिखाने का और साथ में एंजॉय करने का, डांसिंग विद योर रियल लाइफ पार्टनर। क्या एक फेरी टेल से कम है? बस जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, फिर रिजल्ट आगे के आगे देखेंगे। और बहुत बार ऐसा होगा जब यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस ना, रिजल्ट ऐसे प्लेट में सवार होकर आपके सामने मिल जाएगा आपको। बट यू मस्ट नो हाउ टू अटैच विद द प्रोसेस एंड यू मस्ट नो हाउ टू एंजॉय द प्रोसेस एंड डिटैच फ्रॉम द आउटकम। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। One second, Teja ji, रुके। Herman, continue. Are we going linear, Herman? Yes, sir. Wonderful. Continue. Sir, I think fear of pain. Beta, camera नीचे करो so that we can see you. I can only see your eyes. Yes, बोलो। Fear of? Fear of pain. Fear of pain. Wonderful. Explain. क्या लिखा है? Sir, I have written your pain keeps telling you to stay in your comfort zone. Pain is a part of life. Stop running away from it. Absolutely. Pain is a part of life. Stop running away from it. Pain जरूरी है दो चीजों के लिए. One is for growth and the second is developing love and compassion and empathy. लिखा है आपने हरमन? No, sir. Pain is essential for growth
हमने डंबल्स की बात की थी, बॉडी बिल्डिंग की बात की थी हरमन, Yes, sir. correct? So pain is essential for growth and pain is essential so that you can understand somebody's perspective. ये लिखा है तेजा जी, तेजस्विनी जी आपने लिखा है। तेजा जी रिपीट, आपने लिखा है तो वेट, तेजस्विनी आपने लिखा है? नो सर, ये पॉइंट मिस हो गया। हाँ लिख लो। तेजा आप बताएं आगे ये इसी बात को। हाँ, सो मैंने वही लिखा है सर कि embrace pain because it's a part of your life. It will help you evolve only if you get out of your comfort zone. Absolutely. And next is pain helps to cultivate empathy, compassion, and deepest form of love. Wonderful. So बहुत simple है. Pain is essential for these two reasons. One is to evolve and to grow, and the second is to cultivate empathy and compassion. तराली जी आपने लिखा है ये? हाँ जी. Unmute. Yeah. Yeah, I've आपने- written. Wonderful. No pain, no growth. Wonderful. Yeah, No first pain, no line, growth. no growth. Wonderful. Very nice. Very nice. Wonderful. Okay. आगे Yeah. बढ़ते हैं. तेजस्विनी आप कंटिन्यू करें आगे. Next क्या है? पेन के बाद? Fear of past. Explain. कुछ लिखा है? Lines. Yes, sir, एक ही लिखा है, past is a story, it's not our present. So it's Past not is a story. It is not your present. Past एक कहानी है. वो उस समय का प्रेजेंट था. आज वो एक कहानी आपके दिमाग में मेमोरी के फॉर्म में अटक गई है. yes, sir. So इतना ही लिखा है Wonderful. उसमें। Anything else? एक सेकेंड, किसी और ने ऐड किया है इसके अंदर कुछ? हाँ जी तेजा बताइए. हाँ, then we come to मीनाक्षी. वेट, तेजा जी, मीनाक्षी जी आप बताएं आपने क्या ऐड किया fear of past में? I have written the moment we break the pattern of our past mistakes. The moment we break the pattern Of our past mistakes, we stop the past from coming in front of us. Yes, कि मतलब past we के should- हमारे बहुत सारे patterns होते हैं. The moment we break them, and how do we break them? Who can tell me? Break कैसे करेंगे? हाँ जी मीनाक्षी जी बोलिए. How do we break the by pattern? not redoing the same mistakes again and again, learning from Yes. that and regrowing them again. Absolutely. Learning from the previous mistakes and applying that learning in your present so that in future the patterns do not erupt. Please write this line. Yes. Learning, one second. How do we break the patterns? I want everyone to write this. How do we break the patterns? By learning from the past mistakes, applying them in the present so that in the future those patterns do not erupt again. Clear to everyone? आगे बढ़े? Wonderful. आगे बढ़ते हैं. Next is, कौन बताएगा? उसके आगे क्या है? Fear of stage. Yes, ताराली जी बताएं. Fear of stage. इसके बारे में कुछ Yes. लिखा है? एक आध लाइन तो explain करें. Yeah, fear of stage means we look for approval. Yes, correct. बोलिए आगे. Yeah. We look for approval from people. Like it's a fear of non-performance. Correct. We look for approval, appreciation, acknowledgement from people Yeah. or validation from others. Validation from इसीलिए others. हमें डर लगता है कि जब हम कुछ एक्सप्रेस करेंगे, कुछ बोलेंगे स्टेज पे जाके, पता नहीं लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं. अगर उन्होंने मुझे Yeah. रिजेक्ट कर दिया, अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब मेरे साथ कोई नहीं है. मतलब हमें हमेशा कोई ना कोई चाहिए. वहीं से आता है ना फियर ऑफ अबैंडनमेंट से कि हम अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि रिजेक्टेड इंसान क्या हो गया? फेलियर हो गया. फेलियर हो Yeah. गया तो मतलब लूजर हो गया. लूजर हो गया तो क्या मतलब? There is no one who is going to take care of me and I want someone to take care of me. Now बड़ा सिंपल है. You take care of yourself and express yourself and liberate yourself. Okay? Wonderful. आगे बढ़ते हैं. स्टेज फ्राइट खत्म हुआ. इतना क्लियर है? तेजा जी जस्ट राइट दिस लाइंस जो मैंने बोली. ठीक है? ओके. अब आते हैं फियरलेसनेस के ऊपर. सी के लखेरा जी आप बता सकती हैं फियरलेसनेस में आपने क्या लिखा है? अगर लिखा है तो अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करें खुद को. सर फियरलेसनेस में दो चीजें जो इम्पोर्टेंट बताई थी. एक ट्रूथ. यस. ओके.
नंबर 1 पॉइंट इज स्पीक द ट्रूथ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इन्हें? ओनली फर्स्ट पॉइंट को, स्पीक द ट्रूथ को, एक लाइन कुछ लिखी हो इसके आसपास। सर पॉइंट से लिखा है मैंने, तो एक ट्रूथ और एक हायर पर्पस होना चाहिए अगर अच्छा fearlessness- ठीक है, वंडरफुल। ट्रूथ लिखा है और हायर पर्पस लिखा है, तो ट्रूथ कोई समझा सकता है? पुष्पांजलि आप समझाएंगे ट्रूथ का मतलब? Yes, sir. Always we have to speak the truth so that we don't fear for anything and we have the courage and strength to stand for everything or we can express ourselves. Beautiful, very मतलब nice, कभी भी हम लोग बोल very सकते हैं। nice. Let's clap for that. That's wonderful, really nice. Express fear से बाहर निकालने का एक बड़ा आसान तरीका है। आसान मतलब आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच बोलना आसान है मेरे हिसाब से, लेकिन चलो खैर आसान और मुश्किल को साइड में करते हैं। आपको फियर से बाहर आना है, यूज दिस एज एन एप्लीकेशन इन लाइफ ईच डे। स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, जितना सच बोलोगे उतनी निडरता आएगी, जितना झूठ बोलोगे उतनी कहानियों में उलझोगे। कहानियों में स्ट्रेस है, कहानियों में डर है, चाहे वो पास्ट की कहानी है चाहे फ्यूचर की कहानी है। इसलिए कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 कहानियां बनानी पड़ती है। अब सोचो, हम कहानियां दर कहानियां दर उलझते चले जाएंगे तो क्या स्ट्रेस एंजाइटी अपने आप नहीं होगी? अगर हम सच बोल देते हैं तो वो सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सच है और हकीकत है। फिर आपको ना किसी से डरने की जरूरत है कि मैंने क्या कहा था, वही सच आप 10 साल के बाद भी किसी को बोलेंगे उस इंसिडेंट के बारे में, अगर वो सच है तो यकीन, ऑथेंटिफिकेशन, ट्रस्ट तभी तो बैठेगा। अगर मैं 2004 के कोई किस्सा मेरे साथ घटित हुआ है, हकीकत में घटित हुआ है, करेक्ट, तो मैं अगर 25 साल बाद भी उस इंसिडेंट को याद करके बोलूंगा तो उसमें हकीकत है ना, सच्चाई है, तो आपको उस समय भी उतना ही टच करेगा। लेकिन अगर वो झूठ है, मेरा कुछ मैनिपुलेशन है, तो क्या होगा? मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, किसको क्या बोला है। इस ग्रुप को ये बोला था, दूसरे ग्रुप को वो बोला था, तीसरे को ये बोला था, किसको क्या बोला था। अगर कोई तीसरे ग्रुप का कोई तीसरा बंदा बीच में आ गया तो घबराहट, डर, मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। करेक्ट, सच बोलने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा। सेकंड, हायर पर्पस। हाँ जी, कैन एनीवन एक्सप्लेन हायर पर्पस? 1 सेकंड, तेजस्विनी आप एक्सप्लेन करें। Second point of keep higher purpose in life, always rise above your ego, drop the I, me and myself. क्योंकि जब हम हमारे खुद को अटैच नहीं करते कोई चीज को, बस मुझसे और हायर पर्पस से अटैच करते हैं, तो ईगो हट जाते हैं और फियर भी हट जाता है उसी के साथ। एब्सोल्युटली, जब हम खुद को हायर पर्पस से अटैच करते हैं तो हम ड्रॉप करते हैं आई को, हम आते हैं वी के अंदर, और कहीं ना कहीं जैसे मैं छूटना शुरू होता है वैसे ही हमारी पेन और फियर भी छूट जाते हैं, क्योंकि सारा पेन और फियर मैं से रिलेटेड। दैट इज योर ईगो। वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, और कौन सा पॉइंट था बताओ? Embrace pain to grow. इतने सारे लोग बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा? एक एक करके हाथ खड़ा करके, ताकि मुझे पता भी लगे ना, हाथ खड़ा करें। अच्छा, पुष्पांजलि जी आप बताएं। Embrace pain to grow, develop love, compassion and understanding. Absolutely, embrace pain to grow and to develop love, compassion and understanding. Very nice, very beautiful. And number 4, इसके आगे का पॉइंट। हाँ जी, तराली जी बोलिए। वेट, प्रीति जी ने हाथ खड़ा किया, तराली जी होल्ड, प्रीति जी को बात करने देते हैं। हाँ जी, प्रीति जी बोलिए। If you can't handle, just surrender. If you can't handle, just surrender. So nice. अगर आप खुद सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो समर्पण, ऊपर वाले पे, इस ब्रह्मांड पे, सृष्टि पे, जिसको भी आप मानते हैं उस पर समर्पण, ताकि आपने पैदा किया, अब आप ही देखो मैं अपनी तरफ से सब कर चुका हूँ। ठीक है, इस समर्पण के अंदर भी आई ड्रॉप होता है और वी आता है, और विश्वास पैदा होता है, क्योंकि अपने खुद की ईगो को छोड़ देते हो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, आप ही देखो, अब आप ही नैया पार करवाओ। ओके, क्लियर? ऑलराइट, तो डिटेल्ड में फियर समझ में आ गया? वंडरफुल। बिफोर वी टेक एनी क्वेश्चंस, आई वांट टू आस्क एवरीवन, ये बड़ा मजा आएगा इसको। सॉरी, लर्निंग ऑफ द डे। कौन सी ऐसी बात जो आपको टच कर गई, कौन सी ऐसी बात जो आपसे सीख के लेके जा रहे हैं? बहुत सारी बातें सीखी होंगी, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जो टच कर जाती है, जो ऐसे आत्मा में उतर जाती है और हमें लगता है कि उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो टेल मी वन लर्निंग ऑफ द डे। ओके, कहाँ से शुरू करें? पुष्पांजलि जी, वन लर्निंग ऑफ द डे फॉर यू। दैट, देखिए, लर्निंग वही कहें जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।
सिर्फ शब्दों में मजा नहीं है, जब तक हम सीख के उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक सब बेमायने हैं। फिर यहाँ पर आएंगे, थोड़ी देर के लिए प्रवचन अच्छे लगेंगे, फिर उसके बाद सब छूट जाएगा। तो मैं प्रवचन में विश्वास नहीं रखता, मैं इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है सारी की सारी। ओके, तो हाँ जी बताएं। To drop the ego in life, to go to higher, to have a higher purpose in life, we should drop our ego. So नहीं, we should drop our ego नहीं, मुझे बताओ आप क्या करने वाले, आपने क्या सीखा और आप क्या करने वाले? I should drop my ego. हाँ, तो आपने सीखा ये कि आप अपनी ईगो को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे रोज, इसका प्रयास करेंगे? Yes, sir. ठीक है, वंडरफुल। ओके, तेजा जी आप बताएं। सर दो चीजें हैं। एक तो अबाउट फियर ऑफ अननोन, जो आपने बोला कि जब होगा तब फेस करें, उसके बारे में ना सोचे। दैट आल्सो टुक मी बैक टू वन ऑफ योर वीडियोस कि हम एक प्रॉब्लम के बारे में हमें दो बार नहीं सोचना चाहिए, एक बार या तो मन में, और we overthink and then we face the problem twice. Absolutely. या तो एक बार मन में, and then we exhaust ourselves so much कि जब वो होता है then we don't have enough strength and then we so we face the problem twice. How? पहले बार उसके बारे में सोच के, और दूसरी बार जब प्रॉब्लम आती है हकीकत में, that's why we face the problem twice. So instead of facing it twice, जब वो प्रॉब्लम आएगी तब की तब देखेंगे, पहले दिमाग में उसकी कहानी नहीं बनाएंगे और डरेंगे नहीं। Correct? Yes. So yes, I related that to fear as well. And the best acting in the mind was ईश्वर है तो फिक्र क्यों, और अगर नहीं है तो जिक्र क्यों। क्या बात है, वंडरफुल। ईश्वर है तो फिक्र क्यों, और जब ईश्वर नहीं तो जिक्र क्यों। वंडरफुल। तेजस्विनी। यस सर, मेरे टेक्निक्स होंगे कि एक तो स्पीक द ट्रूथ, उसके लिए वी नीड करेज। स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, उसके लिए वी नीड करेज। तो बहुत सारी स्टोरीज हम बनाते जाते हैं, बट यूजुअली आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूं, मैं सच जो है वही बयां करूं। मतलब अब जब लास्ट टाइम के सेशन में आपने बताया, तो उसके बाद से भी यही हो गया कि थोड़ा सा हर्ट होगा किसी को, बट उनको अच्छा लगे इसलिए हम झूठ पे झूठ बोलते जाए और हमारा कोई अंदर फियर क्रिएट हो। इससे बेटर है प्यार से हम चीजें समझा सकते हैं, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एंड सेकंड वन इज एम्ब्रेस द पेन। पेन इज इनएविटेबल, तो वो तो आते ही रहेगा, बट हम उसको कौन से वे में लेते हैं, उसको कैसे चैनलाइज करते हैं, सो दैट हम पीछे नहीं है और हमको कोई डर ना हो, बट हम उससे बस सीख पाए अच्छे से, और हमारे पर्पस इस लाइफ के है जो फुलफिल कर पाए। तो उसमें तो सब इंक्लूड हो जाता है ना सर, कि ईगो भी हट जाएगा, तुम्हारा एक लाइफ का पर्पस सेट हो जाएगा, हायर पर्पस हो जाएगा, ट्रूथ बोलना शुरू करोगे, और जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हो तो सर कर दो भगवान को, वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देंगे तुम्हारे साथ। How nice, wonderful. तेजस्वी ने काफी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए और एक्सप्रेस कर दिए। वंडरफुल, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस। तराली, थैंक यू। तराली जी। For me, I have learned that fear of unknown. So the thing is that जो होगा देखा जाएगा. Today I have learned that because I was very much fearful about future. क्या होगा क्या नहीं होगा. So now today I have learned that जो होगा देखा जाएगा. We will cross the bridge when we will arrive. So wonderful. That's all. And another one is fear of past. That past cannot repeat exactly. That's what. So we should not create the memories again and again of past, and that's all. And another, so many points are there, like desire and attachment. So it creates also pain. And another one is a fear of non-performance. Suppose like घर में मतलब सभी को खुश रखना, this is not possible. So I have that fear that I have the fear of non-performance. कोई नाराज हो जाएगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा. So that's I have learned that fear of non-performance also. Wonderful, very nice, very nice. Thank you. That's beautifully explained. Very nice. Moving on to next, Harman. What is one learning of the day that
you will apply in your life? Yes, sir. One of the learnings is that pain is the part of life and you should not run away from it. Pain is essential for growth. And another learning is that the fear of past, that I should learn the lesson from every incident and not repeat it again. Beautiful. Learning from every incident and do not repeat it again. Very nice. CK Lakera ji. हाँ जी. Thank you, Harman. सर वैसे तो सभी कुछ इतना इंफॉर्मेटिव है कि मतलब हर किसी मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो बिल्कुल जीवन में जैसे अप्लाई करने वाला है सारे पॉइंट्स जितने बताए सर। पर सबसे पहले जैसे फियर की जो डेफिनेशन थी सर वो बहुत फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, ये बस मुझे लगता है इसी को रिपीट करते रहेंगे ना तो फियर शायद भाग जाएगा। सही बात है। सर अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं शायद सभी ने रिपीट किए सर, मतलब इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर। Thank you Very so much. nice. Thank you Preeti ji. Your learning of the day. सर हम मतलब लाइफ में चाहते हैं सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, बट कभी अनसर्टेनिटी भी होती है, कभी कुछ बुरा भी हो सकता है, तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर रहने चाहिए, फियर निकाल देना चाहिए कि जो होगा लेट इट गो, देखा जाएगा, तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जैसे हम आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो हमारे बोलते हैं जैसे थारी मर्जी वैसी मारी मर्जी। सही बात है, जैसे थारी मर्जी वैसे मारी मर्जी। Whatever is your will is my will. Correct? That's a beautiful line. So ये surrender में आता है कि whatever is your will is my will. लिखो ये लाइन तेजा जी, बड़ी अच्छी लाइन है। जैसे थारी मर्जी वैसे मारी मर्जी, राजस्थानी लाइन है, हम भी इसको अच्छे से आगे तक पहुंचाएंगे। whatever is your line, whatever is your will is my will. It's a beautiful line. Wonderful. Thank you, Meenakshi ji. Thank you, sir. आज का लेसन बहुत अच्छा था and you've given us so many good points and I guess we should apply them on ourselves on daily basis. So first thing I'll go with the word fear जो आपने mention किया, false indication, remove that, just remove. If you want to let go fear, stop assuming things, just face whatever comes ahead of you. The other thing I've learned in this is that do everything जो attachment होती है, it leads to pain and fear, hence just perform your duties and your actions. Expectations should be very small or no to it. So once you let go, things will flow. Wonderful, very beautiful, very nice. So let's clap for her. That's really nice. Said Naila ji, हमारी cutest participant कहाँ है? Video on करो. हाँ जी. Hello, how are you? हमारी क्यूट सी पार्टिसिपेंट, इतनी पुरानी पार्टिसिपेंट हमारी, इतने सालों, एक साल तो हो गया होगा। हाँ सर हो गया एक साल। हाँ, पता नहीं कितने सेशंस आपने अटेंड कर लिए। तेजा ने कितने सेशन, आई थिंक 100-200 सेशन तो आप लोगों ने ऐसे ही अटेंड कर लिए होंगे, है ना? हाँ तेजा कितने सेशन हो गए होंगे आपके अभी तक? सर मैं काउंट 100 प्लस तो होंगे, आई एम श्योर। हम ही ने आई थिंक 200 के आसपास कर लिए। ये साइड नाला आपके भी होंगे मुझे लगता है। हाँ सर, उतना मैंने काउंट तो नहीं किया, हो गए होंगे सर बहुत सारे। हो गए। वंडरफुल। हाँ जी, व्हाट इज योर लर्निंग ऑफ द डे? हाँ सर, वही सर, मेरा कैसा रहता है, कोई चीज आने से पहले मैं बहुत डर जाती हूँ सर। तो मैंने ये सीखा है कि वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव, यही सीखा है सर मैंने। कोई चीज आने से पहले इतना डर होता है ना कि हो मतलब हो जाएगा तो कैसे होगा, हो जाएगा तो कैसे होगा, अभी वो चीज आती भी नहीं है। सिंपल है, वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव। आने तो दो, पहले से कहाँ डरते रहेंगे हम जिंदगी के अंदर। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल है बस, और कुछ नहीं है झूठ लेकिन दिख रहा है सच। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, किसी को कुछ पूछना था बिफोर वी एंड इट? आई थिंक somebody has any confusion। हाँ जी, तेजस्वी बोलिए। यस सर, आपने fear of losing someone में बताया था कि actually we are capable of taking care of ourselves, तो हमें वो fear नहीं होना चाहिए। तो सर जस्ट 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं खुद आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, इवन मैं बैठ नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही।
तो आई थिंक वो टाइम पे तो जरूरत पड़ती है ना, जैसे अगर मेरे भैया या मेरी मम्मा नहीं होते तो आई गेस मैं वैसी पड़ी रहती, कुछ हो नहीं पाता था, अगर कोई भी नहीं होता सराउंडिंग में, तो सर वो तो अटैचमेंट हो ही जाता है वो तो एक्सपेक्टेशन रहते ही है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब हम बीमार हैं, बड़ी सिंपल सी बात है ना, मैं ही तो है यहाँ पर, मैं बीमार हूँ तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई तो होना ही चाहिए ना। जब मैं बीमार नहीं हूँ तो मेरे को पूरी आजादी भी मिलनी चाहिए। सोचो जरा, जब मैं बीमार नहीं हूँ तो कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए मुझसे। कोई पूछे ना कि मैं कितने बजे आ रही हूँ, कितने बजे जा रही हूँ, फिर ये लोग कौन होते हैं रोक टोक करने वाले। लेकिन जब मैं बीमार हूँ तो इनका हक बनता है पूरा ख्याल भी रखें। तो हर जगह मैं ही तो आ रहा है तेजस्विनी जी, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आता है। देखिए मैंने जैसे कहा था कि हम लोग कंप्लीटली डिटैच तो नहीं हो पाएंगे, उसके लिए सब चीजों का त्याग करना पड़ता है, मंक बनना पड़ता है, या जैसे योगी हमारे संत महात्मा करते हैं, सब चीजों का त्याग कर देते हैं, सब चीजें, सब लोगों का भी त्याग कर देते हैं। वो एक अलग जर्नी है। लेकिन हम बैलेंस कर सकते हैं उन अटैचमेंट को, बैलेंस कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। क्या होता है जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो डर होगा ना खोने का। जैसे हमारी एक पार्टिसिपेंट है परी गर्ग, परी का क्या है, जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट है तो डर हमेशा दिमाग में रहता है कि मम्मी पापा को कहीं कुछ हो ना जाए। करेक्ट। तो हम जब उसको देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस हो गया, कहीं कुछ हो ना जाए का मतलब हम 99.9% डेथ ही समझते हैं। सेपरेशन कम, डेथ ज्यादा। एक और पॉइंट लिख लीजिए सब के सब, एक बात समझना जरूरी है, सबसे बड़ा फियर है फियर ऑफ डेथ हर इंसान का, अपना या आपके लव्ड वंस का या किसी का भी जिससे मोहब्बत है, प्यार है, अटैचमेंट है, डिजायर है, कुछ भी है, फियर ऑफ डेथ। लेकिन एक चीज और समझना जरूरी है, डेथ का कॉज क्या होता है। डेथ का कॉज कोई एक्सीडेंट नहीं है, डेथ का कॉज कोई डिजीज नहीं है, डेथ का कॉज कैंसर नहीं है कि कैंसर है तो डेथ है, डायबिटीज है तो डेथ है, करेक्ट, या एक्सीडेंट होगा तो डेथ है। डेथ का कॉज बर्थ है, कि अगर बर्थ है तो डेथ तो होगी ना। बाकी सब तो मीडियम्स हैं, बाकी सब तो जरिए हैं, चाहे वो कैंसर जरिया है, चाहे अल्जाइमर जरिया है, चाहे कार्डियक अरेस्ट जरिया है, या फिर एक्सीडेंट जरिया है। ये सब तो जरिए हैं, मीडियम्स के थ्रू हो रही है। बट कॉज क्या है, जड़ क्या है। अगर बर्थ हुआ है तो डेथ निश्चित है, तो डेथ का कॉज बर्थ है। तो ये भी लिखना जरूरी है, फियर ऑफ डेथ, द कॉज इज बर्थ। सो अगर ये अवेयरनेस आ जाती है हमारे अंदर कि भाई अगर जन्म हो चुका है मेरा तो मृत्यु निश्चित है, मेरी भी और मेरे अजीज लोगों की भी, कभी ना कभी तो होगी होगी। तो या तो 24 घंटे उसके बारे में सोच सोच के उससे अटैच हो जाएं और फिर अपने आप को डर के अंदर जागृत करते रहें, या फिर इस बात की एक्सेप्टेंस कर लें कि ये मेरे साथ भी होगा, उनके साथ भी होगा। तो जितना समय है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब अगेन जितना समय है उस प्रोसेस को एंजॉय करें। पता नहीं कब क्या होगा, किसी को क्या पता। सो ये हम उसके साथ रख सकते हैं। सो अपनी अटैचमेंट्स को हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया कि ये हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम इनके साथ जुड़े हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। हम इनसे कॉन्स्टेंटली अप्रूवल, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट या इनके बिना नहीं रह पाएंगे। देखो ये भी ना बड़ी कहने की बात है कि हम किसी के बिना नहीं रह पाएंगे। मेरे डैड की मृत्यु हुई मेरे बर्थडे वाले दिन, आज भी मेरी सांसें चल रही हैं, और मैं ये कहूं कि मैं खुश नहीं हूं तो ये भी झूठ होगा। करेक्ट। मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 8 सालों में, 2013 से 2021, 8 सालों में खुशी को भी महसूस किया है। कुछ कुछ लम्हे होंगे गम के, कुछ कुछ लम्हे उनको याद किया होगा बस उस मोमेंट पे। ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे में गमगीन हूं। तो ये झूठ नहीं है ना, सच तो यही है कि हम रुकते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अटैचमेंट एक्चुअली हमारी अपने से ही रिलेटेड है, अपनी, इसलिए उसको बैलेंस करके रखो। लेकिन अगर 24 घंटे उस डर में, चक्रव्यूह में फंस जाओगे तो हाथ पैर फूल जाएंगे ना कुछ भी काम करने के लिए। इतना ही सिंपल है। तो ये हुआ था रिसेंटली, कोविड लॉकडाउन के टाइम हुआ था। मतलब मैं रात भर मोस्टली सो इसलिए नहीं पा रही थी कि मैं बार बार जाके मम्मा के रूम में चेक करती थी कि वो सही तो है या नहीं। मतलब और जब सूरज उगता था उसके बाद मैं सोचती थी ओके अब रात चल गई, अब मैं सो सकती हूँ। और रात भर यही because you must have felt, because there's a deepest fear that you need your mother to take care of yourself, because you're too attached to your mother and you feel without her you can't survive. So you're actually not taking care of her, you are taking care of the medium which takes care of you.
That's the truth. He is the medium who takes care of you. So we actually take care of the medium who takes care of us because we need that person to survive. So उसकी नीड कम कर देनी है बस. अगर नीड 100% है तो नीड 50% कर दो ताकि हम फियर से, देखो फिर कोई बात होगी ना कि मॉम से अगर रात भर अटैच रहोगे तो सुबह अपना काम नहीं कर पाओगे, नींद पूरी नहीं हो पाएगी, अपना सारा शेड्यूल खराब होगा, सब चीजें होंगी. तो फियर ने आपको जकड़ लिया, इट पैरालाइज्ड यू, and now you can't do what you want to do or what you have the capacity and the capability and the talent to do in your life. It paralyzed you. That's the truth. But the 5 AM ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो चेंज हो गया, मतलब आई कैन स्लीप पीसफुली और वो फियर से मैं बाहर आ गई हूँ बहुत हद तक. बट ये मैंने बहुत सहन किया हुआ है, बट लाइक आई एम लाइक नाउ ओवर इट, लाइक ओके. सो आपकी ऑल टीचिंग्स आर वेरी मीनिंगफुल. थैंक यू सो मच. उससे ही Thank you so much. आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है सर. थैंक यू सर. Thank you so much. Wonderful. Everyone, तेजा जी, तेजा जी, तेजस्विनी जी, आप दोनों TTT में अटक गए. तेजा जी और तेजस्विनी जी, वो अपना if you can make a word file and send it to us, I'll tell Gopi ma'am to assimilate the points, check it once, I will check it, and then we'll send it to everyone. Okay? All right, everyone. Thank you so much for joining. Keep learning, keep sharing, keep growing. It's as simple as that. और कोशिश करें. देखो एक और बात, हाँ ये बात कहनी भूल रहा था. ये शब्द बड़े ताकतवर होते हैं, तो इन शब्दों को जो आप अपने जबान से निकाला है ना कि ये हमारी लर्निंग ऑफ द डे है, तो ये वो वाली कमिटमेंट होती है सलमान खान वाली कि अगर मैंने अपने शब्द निकाल दिए जबान से फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. तो अगर आपने जो बोला है ना उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो शब्द खोखले हो जाएंगे. जब शब्द खोखले हो जाते हैं तो उनका वजन खत्म हो जाता है. जब वजन खत्म हो जाता है तो आत्मा का वजन खत्म हो जाता है. फिर कोई अपनी बातों में वजन नहीं रह पाएगा. सो व्हाटएवर यू से, एक्सपीरियंस इट. अगर आपने ये लर्निंग कही है, सो इट इज टाइम टू एक्सपीरियंस इट ईच डे. ओके? चाहे वन लर्निंग पर वीक, 1 सेकेंड, चाहे 1 लर्निंग पर वीक हो, ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स आज इंप्लीमेंट करने. ओके? 1 लर्निंग पर वीक, बट इम्प्लीमेंट इट. अगर सच बोलना है तो कोशिश करें 4 दिन तक तो उसको करें, या कोई हायर पर्पस या जो भी आपको करना, जस्ट कीप डूइंग इट. यस तराली जी. Yeah, I've lost my father and it has affected me very much. Still, I'm suffering. I love my daughter very much. Now I have that fear that if something happens to her, what I'll do. So what is the process of overcome it? देखिए बात वही है. We पहले father was the medium, now we have made the daughter the medium. That you know attachment, देखिए daughter है आपकी तो attachment तो होगी. The idea is अगर आप बहुत ज्यादा attached होते चले जाएंगे तो बड़ा simple हो जाएगा ना. आप चाह के भी हम अपनी डॉटर को ग्रो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हम चाहेंगे वो हमेशा हमारे पास ही रहे, हमारे कोकून में रहे, बाहर ना जाए. जाएगी तो डर लगेगा. अगर वो ग्रोथ भी करना चाहेगा बच्चा तो आप अपने फियर की वजह से जो आपको पैरालाइज कर रहा है वो उनको भी पैरालाइज कर देगा, उनकी ग्रोथ को भी रोक देगा ना. बच्चे कल को हाइपोथेटिकली कहते हैं कि मुझे अमेरिका जाना, जस्ट एग्जांपल है रैंडम, या मुझे किसी दूसरे शहर में जाना है, तो क्या रहता है, माँ बाप को डर लगा रहता है. मैं समझता हूँ वो डर थोड़ा सा जायज है, लेकिन बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी जिंदगी में उनको आगे बढ़ने के लिए वो भी तो जरूरी है. तो ये फैसला हमें लेना पड़ता है कि हमारे फियर या फिर बच्चों की ग्रोथ कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके? यहीं पे बात आती है कि हमें कभी कभी फिर अपने मैं को छोड़ना पड़ता है. जैसे माँ बाप को बहुत बारी अपने मैं को छोड़ना पड़ जाता है कि बच्चों की खुशी इसमें है. जैसे मेरे माँ बाप ने 19 साल में मुझे कहा था कि बॉम्बे जाना चाहते तो चले जाओ, जबकि बॉम्बे में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई कजन नहीं है, कैसे करोगे, क्या करोगे, कुछ भी नहीं था इंतजाम यहाँ पर, जबकि घर पे सारी लग्जरीज थी. लेकिन जब मैंने कहा मुझे जाना है तो वो भी चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस करूं, मेरे डैड का ख्याल रखूं, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को छोड़ा, सारे डरों को छोड़ा, और उन्होंने कहा इस बच्चे की ये ख्वाहिश है, इसी में इसकी ग्रोथ है, तो इसे करने देना चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्यूटिफुल लव. नहीं तो फिर वो मुझे कैद कर लेते अपने डरों के चक्रव्यूह में फंस के. जब वो मुझे कैद कर लेते तो मेरी जो पर्पस है जिंदगी का, जिसके लिए मेरी आत्मा पैदा हुई, जिसके लिए मेरी सोल, तो वो अधूरी रह जाती. फिर मैं दिल्ली में कहीं बिजनेस कर रहा होता जहाँ पे नहीं होता. ओके? All right, everyone. Thank you so much. Take care of yourself, and I'll see you. We also have sessions on Wednesday and Fridays. You can get connected with Gopi ma'am अगर आपको learnings continue रखनी है. Okay? ठीक है?
Thank you so much. Take care of Thank yourself. you. God Good health. bless Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye bye. Thank Bye. you so much. Thank you. Thank Thank you. you so much, sir. Thank you so much, everyone.